मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। यदि गुरु गोविंद दो गड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। You need to understand, you need to accept one thing, that people are not associated with you most of the time, but people are associated with the possibilities associated with you. मन ये कहेगा कि यार सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। कुछ लोग होते हैं जो उनको खुद लगता है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, एंड ये बहुत अच्छी एक स्ट्रीम है जिससे मैं अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकता हूँ। लोग उसके लिए भी तैयारी करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले कैटेगरी में होते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेहनत तो इंसान करता ही है। आप सब लोग बहुत मेहनत करके इस कॉलेज में भी आए, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में आए हैं, आगे भी अगर आप मास्टर्स करते हैं या लाइफ में कुछ भी करते हैं, मेहनत तो आप करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट मेहनत के साथ सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 मीटर या 400 मीटर रेस भाग रहे हैं और आप उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, तो आप चाहे कितना भी तेज़ भाग लें, आप कभी जीतेंगे नहीं। IAS के एग्जाम की तैयारी शुरू कब करनी है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे तो सब, हाथ तो सबने खड़ा किया, पर शुरू कब करनी है? तो शुरू तब करिए जब आपका मन करे। विद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे ने छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। Thank you. Please be seated. Udan, as the name suggests, reverberates a man's desire to break the shackles of limitations and reach the heights of boundless possibilities. Treasuring the motto of Dharmo Rakshiti Rakshitah, the society is a paragon of the values of dedication, truth, and karma. Being a one-of-a-kind initiative of our college, the society visualizes a multidisciplinary approach for helping the budding civil servants in streamlining their preparation for the UPSC examination. Be it organizing multifarious events, discussion with prominent personalities, or curating fruitful contents on pivotal topics of civil services, the society leaves no stone unturned in providing the aspirants with all the benefits that they need during their preparations. So, let's dive into this journey and discuss what CSE is all about. The Civil Service Examination, commonly abbreviated as CSE, is a nationwide competitive examination in India conducted by the Union Public Service Commission for recruitment to higher civil services of the Government of India, including the Indian Administrative Services, the Indian Foreign Services, and Indian Police Services. It also includes other coveted services. It is conducted in 3 phases. A preliminary examination, being a screening exam in nature, consisting of 2 objective type papers, includes General Studies Paper 1 and General Studies Paper 2, also popularly known as Civil Service Aptitude Test or CSAT, and a main examination consisting of 9 papers of conventional type. Today, to make this dream achievable, the Udan Society of Shahid Bhagat Singh College is honored to collaborate a session on CSE preparation with the dignitaries and representatives associated with Analyst IAS. Analyst IAS is a premier institute headquartered in Delhi, dedicated to providing comprehensive preparation for the UPSC Civil Services examination. Their faculty panel comprises professors, ex-civil servants, and subject experts, ensuring the highest quality of guidance and support. A big round of applause for them. Now, I take this opportunity to invite Shashank sir to felicitate Mr. Nitin Shivhare with a planter and an Angavastra.
Now, I would like to request Mr. Naman Jain sir to felicitate Mr. Amol Srivastava with a planter and an Angavastra. Thank you, sir. Now, without much ado, carrying on with the legacy of multifarious events organized by the society, I feel honored to introduce you all to Mr. Nitin Shiv Hare, sir, CMD Analyst IAS. I take this opportunity to request sir to bless us with his august presence and deep learning on civil services that he has acquired over the years. A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to say thank to all of you guys because it's the precious time, especially in this young age, young colorful age, when already one day has passed yesterday. And this 2 hours or more session, you will like to have something good which is very much valuable for your preparation, especially for your career, as well as for us that we can be connected with you. And after that, I would like to say my thanks through this video to Professor Atri Sahab, principal of this college, who made it possible for us to connect with you, to have a connect with you. Then Mr. Arvind Verma, who is very close known, dear friend of mine, who got me connected to the Udan Society, which was established the year before this in 2022. And Mr. Shashank and the co-coordinator. I am thankful for all the arrangement that they have made and all the senior teaching staff, the professors here and all the staffs available. Now, before I start my talk of the day, like I was allotted for 45 minutes to 1 hour, 15 minutes time to speak. Though I am a very habitual teacher for speaking for more than 10 hours a day, but I will not be that pitiless for you and for this session. So basically it is hard for me to conclude in 1 hour because I have some habit to dive deep into something and then speak about those scopes, those aspects that are generally not known to us because patience, more than 20 hours, 30 hours required. Before I came to this college, I requested Mr. Shashank that what topic they want me to speak. Please ask the student because they are the only person who can tell me that yes, this is the topic. So there were 4 topics. The first topic was about the coaching and the coaches, means institute or the institution. Then the bridge from college to IAS. Then the third topic was lifestyle during UPSC preparation and in service. And the third topic was that should we prepare for the civil service exam or not. So then I was told by the coordinator Mr. Shashank that sir, sabhi ka mix kar lijiye. So again it was a difficulty for me that for one topic I need 3-4 hours to speak, but I just then got a survey of all the content of my all 4 topics and then I made one recipe for 45 minutes that I am going to present. Now, before I start my speech for the day, I would like to ask, because you guys are there with many of the question in your mind and session जो होता है वो जो attend करने वाले लोग होते हैं उनके question से ही बनता है. यदि आपके questions unanswered रह जाएंगे तो मैं कुछ भी बोलूँ उसका meaning बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा. And I have used Hindi before that. I also like to ask you that whether you would like to hear me in Hindi or in English. Mix. Okay. आज जब बड़ा अच्छा दिन है जब किसी दूसरे देश में जहाँ पे पहला एक मंदिर बना है जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है स्वामी जी का एक बहुत बड़ा 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, ये बहुत एक अच्छी बात है. एक कल्चरल एक्सपोजर, एक मेल्टिंग पॉट बनना चाहिए इंडिया की तरह, सर्वधर्म संभव सर्वधर्म सुखाय. और ये एक एस्पिरेशनल एस्पेक्ट भी होना चाहिए हर किसी कैंडिडेट का. बिकॉज मैं एक टीचर हूँ और मेरे लिए हर एक बच्चा वो कहीं से भी आता है, किसी भी जगह से है, किसी भी सोसाइटी से है, मेरा उससे दिल के साथ में कनेक्ट ये सेलेक्ट हो जाए.
यही एक सबसे बड़ी सोच है जो इस फ्रीक्वेंसी से निकलती है और काफ़ी सारे लोग इससे एसोसिएट होते हैं। मैं इस पहले टॉपिक को लेना चाहूँगा कि कोचिंग और कोचेस या इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस ये क्या होता है। मैनी ऑफ यू, बिकॉज मिस्टर शशांक वॉज आस्किंग दैट आप किस किस डिपार्टमेंट से हैं, तो पता चला पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ यहाँ पे हिंदी लिटरेचर से भी, या हिंदी वाला जो डिग्री है अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट, वो लोग भी बैठे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद में एक ड्रीम रखते हैं कि हम ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर का पार्ट बनेंगे और उन सब लोगों की तरह एक ज़िंदगी जिएंगे 1 साल या उससे ज़्यादा, जो लोग अभी जी रहे हैं, जो आपके सो कॉल्ड सीनियर्स हो सकते हैं। तो आप सारे के सारे लोग एक इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं जाके अपना दाखिला करवाएंगे और वहाँ पर वो जो लोग भी पढ़ा देंगे उनके हिसाब से आप चलेंगे, क्योंकि आपने अपनी फीस दी है विलिंगली। लेकिन मेरा एक पहला सवाल, एक छोटा सा अनुभव है एज अ टीचर के नाते, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन में क्या फ़र्क है, या एक कोचिंग या कोच में क्या फ़र्क है। एक इंस्टीट्यूशन एक बच्चा जो पैदा हुआ है और वो थोड़ा थोड़ा पहचानता है 5-6 महीने तक, तो पहली इंस्टीट्यूशन उसकी मदर और उसके फादर बनते हैं, वो इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है एक कॉमर्शियल रीज़न। कॉमर्शियल वर्ड का मैं इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ कि बाहर का कोई भी पर्सन होगा वो आपकी तारीफ में एक गिव एंड टेक रखेगा, लेकिन एक मदर और फादर या रिलेटिव्स या आपके सोशल पीपल या आपके दोस्त, एक वर्ड होता है साइकोलॉजी में जिसका नाम है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो पीठ पे थपथपी लगी थी मेरे दादाजी की या मेरे पिताजी की या मेरी माँ की, वो बड़ी तारीफ काबिल थी मेरे मन में, और मुझे ये था कि वो हर बार लगे, भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और बाई चांस वो पीठ पे थपथपी आपके किसी सिबलिंग्स से लग गई, सिबलिंग्स मतलब आपके जो साथ में कजिन्स हैं, आपके ब्रदर हैं, कितना बड़ा जेलसी फैक्टर बनता था, लड़ाई हो जाती थी खूब जबरदस्त वाली, फिर माँ बाप को ही छुड़ाना पड़ता था। वो होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और वो करोड़ों रुपए में खरीदी नहीं जा सकती। ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या आपको किसी इंस्टीट्यूट से मिल सकता है? नहीं, वो किसी इंस्टीट्यूशन से ही मिलेगा। इंस्टीट्यूशन को हिंदी में संस्था कहते हैं। ये संस्थाएं बनी हैं एक एक्सेप्टेड नॉर्म से, जैसे कि शादी होती है, शादी अपने आप में एक संस्था है जो एक्सेप्ट हुई है। मदर फादर आपके लिए सबसे पहली इंस्टीट्यूशन बनते हैं, फिर प्ले हाउस या फिर नर्सरी या फिर उसके बाद में स्कूल और ये आज का कॉलेज। इसको इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशन का सफर तय करने में हजारों साल लग जाएंगे, तब भी शायद गारंटी नहीं है कि वो बन पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो, वो रिगार्ड अपने आप से नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी परफेक्शन तक ना पहुंचे उस इंस्टीट्यूशन जो घर में मिलती है, लेकिन कुछ तो उसके नियर बाई होगा ही। एब्सोल्यूटिज्म तो पॉसिबल है नहीं कि फिजिक्स हमारी एब्सोल्यूट साइंस हो सकती है, या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिलोसफी एब्सोल्युटली आर्ट हो सकती है। नहीं तो ऐसा होता तो MKS और FPS और CGS जैसे सिस्टम अलग अलग डिस्पैरिटी के साथ में नहीं बनते। बट ये कोइंसिडेंट वाली बात है कि इंस्टीट्यूशन की तरह, यदि मैं सेकंड को डिफाइन करूं तो सेकंड वो एक इंटरवल है जिसमें एक CGM एटम 9,19,26,26,770 टाइम्स वाइब्रेट करता है। यही एग्जैक्ट नंबर है। तो उस परफेक्शन को न ढूंढते हुए उससे नियर बाई रेफरेंस पॉइंट तक यदि हम पहुंचने की कोशिश करें तो हमें किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैं आगे इंस्टीट्यूशन की तरफ पहुंचाने की तरफ आपका दिमाग ले जाना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं। चाहे इसमें मेरा भी खुद का नुकसान हो जाए जहां तक एक कॉमर्शियल रीजन है, लेकिन आपके करियर के लिए यदि ये पर्दा उठना है तो जरूरी है। यदि इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो आज एक उसका एक प्रोटो टेलर मेड अप्रोच चलता है मेंटरशिप। मेंटरशिप और टीचिंग में मतलब अंतर क्या होता है कि मान लीजिए आप 100 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने अपनी बात कही 3-4 घंटे में और बात खत्म कर दी, शायद 2-4 लोग मेरे पास आएंगे डाउट पूछने के लिए और सेशन खत्म हो गया। यदि ये नंबर 100 से 400 में बदल जाए तो और भी ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। और भी ज़्यादा मेरे लिए और डिफिकल्ट तब हो सकता है जब मुझे 10 मिनट बाद दूसरे किसी 400 स्टूडेंट्स की क्लास में जाना है, उसके बीच में मुझे चाय भी पीनी है, कुछ खाना भी है, क्योंकि खाली पेट तो कीर्तन भी नहीं होता, फिर क्लास कैसे होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ यदि मुझे हैंड होल्डिंग मेंटरशिप 1-to-1 सेशन मिल जाए, मुझे वो संदीप भैया वायरल फीवर वाला मिल जाए जिसके लिए मैं DM बनूं और बाद में उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठा लूं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन एक ऐसा संदीप भैया, आपने मूवी वो वायरल फीवर वाली सीरीज देखी होगी, ठीक है, ऐसा कोई मुझे मिल जाए तो कम से कम मेरे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरे जो डेली के डाइवर्जन्स हैं, वो तो कम से कम दूर होंगे, और कुछ मेरी जिंदगी के इमोशनल पहलू भी हैं, उसमें भी थोड़ी सी लाइट पड़ पाएंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं उसमें। इंस्टीट्यूशंस जो मदर फादर की होती हैं ना, और जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, शादी से पहले एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती है, वो बड़ी हावी हो जाती है। 2 लोगों की मित्रता और घर की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन मदर फादर की, वो
ओवर पावर कर जाती है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। ये ओवर पावरिंग यदि सिलेक्शन के बाद हो तो ज़्यादा बेहतर है। नाउ इस इंस्टीट्यूशंस को हम यदि मेंटरशिप के रूप में देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटर चुनने से पहले भी आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन मेंटर है। हो सकता है कि आपका कोई बड़े ब्रदर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कजिन हैं, कोई ऐसे नोन पर्सन है जो आपको बहुत लाइक करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, लेजर टाइम से मैं आपसे बात करना चाहते हैं। तो यदि आपने उस गुरु को ढूंढ लिया तो आपकी आधी जो तैयारी है वो पूरी हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, और आधी तैयारी आपकी खुद की रह जाती है जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि जैसे कबीरदास जी की कुछ बातें हैं ना, उन्होंने एक बात कही थी, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यदि आपको मेंटरशिप इंस्टीट्यूशन के रूप में मिल जाती है तो आपकी आधी तैयारी वैसे ही पूरी हो जाती है, आपको इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ऐसा एग्जाम जो मदर ऑफ ऑल दी एग्जामिनेशन है, इससे आसान एग्जाम कोई हो नहीं सकता, जहां पे एनसीईआरटी की वही किताबें दोबारा पढ़नी है, वही न्यूज़पेपर जो घर में आता था, पिताजी पढ़ते थे, हम भी कभी कभी पढ़ लेते थे, उसको पढ़ने से 60 to 70% एनसीईआरटी बुक्स के साथ में स्टोरी पूरी हो जाती है, और बस आंसर राइटिंग करनी है। वो तो बस कलम का सिपाही ही बनना है। घर में बैठ के यदि 50 पेज डेली लिखे जाएं, 40 पेज लिखे जाएं, तो कहीं ना कहीं अपने आप रास्ते जो दिल और दिमाग है वो ढूंढ ही लेता है। दिल तो बेसिकली है कुछ नहीं, वो तो एक पंपिंग मशीन ही है बॉडी की, बट लेफ्ट ब्रेन जो आपका होता है वही इमोशनल कनेक्ट रखता है आपके राइट ब्रेन से। मैं बेसिकली इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लोर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि इंस्टीट्यूशन न तो कोई आपसे पैसे लेगी, न कोई उसका कमर्शियल इंटरेस्ट है, न वो आपका साथ छोड़ेगी आपके सिलेक्शन के बाद, राइट। एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट है दो लोगों के बीच का जो एक्चुअली रह जाता है। नाउ अभी जब इस इंस्टीट्यूशन को मैं इस कॉलेज के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता चला यहाँ पे सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पे गांधी स्टडी सर्किल है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे इनोवेटिव एस्पेक्ट्स लेने की कोशिश हो रही है, भले ही उनमें सोल ना लगी हो सकता है आप लोग उन्हें सुबह शाम देखते हो तो आपको उतना इंटरेस्ट ना आता हो, लेकिन एक बाहर के इंसान को इस चीज़ को देख के ना बड़ी खुशी होगी कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और आप लोगों का ये 3 साल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी इंस्टीट्यूशन वाले एस्पेक्ट से मैं दूसरे वाले टॉपिक पे आ जाऊंगा जो कहता है कि कॉलेज से क्या एक ब्रिज निकलता है आईएएस का, जहां पर लास्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा है और वो फॉर्म भरता है यूपीएससी का, उसे पता भी नहीं है कि क्या हुआ, ना उसने कभी किसी को बताया, क्योंकि एक सोशल प्रेशर भी आ जाता है, फ्रेंड्स का प्रेशर भी आ जाता है। फिर वो फ्रेंड्स यदि फेल हो जाएगा तो बड़ा खुश होगा, यदि पास हो गया तो जेलसी फैक्टर 3 इडियट वाला बड़ा ही होगा कि दोस्त फेल होने पे तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन पास यदि हो गया तो बहुत दुख होता है। और उसने फॉर्म भरा लास्ट सेमेस्टर में, उसे इंस्टीट्यूशन मिल गई थी, और कहीं से भी कैसे भी पढ़ के थोड़ा किस्मत भी साथ दे रही थी, उसका प्रीलिम्स भी निकल गया। कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी थी, एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट करता था, ऐसे कॉम्पिटिशन भी लिखता था, वो मेंस भी क्वालिफाई कर गया। और पता नहीं इंटरव्यू में क्या हुआ, पसंद आ गए, कुछ ना कुछ तो अच्छी रैंक आ गई और सिलेक्शन लास्ट में हो गया। ना आप ओल्ड राजेंद्र नगर गए, ना आप मुखर्जी नगर गए, ना आपने 2 लाख रुपीज़ 2.5 लाख रुपीज़ खर्च किए, और उसके साथ में ना आपने 3 लाख रुपीज़ अराउंड जो एक साल में वहाँ पे पैसे खर्च होते रहने का वो आपने खर्च किया, मतलब 6 to 7 लाख रुपीज़ भी आपने बचा लिया, कॉलेज में रह के ये काम आपका बन गया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस ले पाते हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बात कहना है कि यदि करना है तो सोचना नहीं है, और यदि सोचना है तो पहले करने से सोचना है बस। और डिओन्टोलॉजिस्ट एक टर्म आता है जो गीता का सार यही कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जो सबसे बड़ा टीचर आपका बन जाता है। नो, दूसरा एस्पेक्ट मेरा आपकी कॉलेज की लाइफ से आईएएस तक का जो आता है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में सबसे बड़ा आता है कि भाई मुझे इस तैयारी को करना है या नहीं करना है। बिफोर आई डाइव इनटू दिस टॉपिक, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग वास्तव में यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सीरियस है कि नहीं भाई करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। You may raise your hand. Okay, please. Now, कितने ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं इस बात के लिए कि तैयारी शायद करेंगे या नहीं करेंगे। थोड़े से फैक्टर्स हैं बीच में, वो इमोशनल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, और भी कुछ तीसरा फैक्टर भी हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। तो मेरा तीसरा सवाल का आंसर मुझे अपने आप में ही मिल गया कि ऐसे कोई यहाँ पे शायद ही बैठा हो कि जिसको तैयारी नहीं करनी है, वो
ये सोच रहा हो कि नहीं तैयारी नहीं करनी है बट सेमिनार में मुझे पार्टिसिपेट करना था, सुन तो लूँ एटलीस्ट, मेरा दोस्त आया है तो वो साथ में लेके आ गया। यदि आप लोग इस तैयारी को करते हो तो वही पहला वाला टॉपिक जो इंस्टीट्यूट जिसमें 10,000 बच्चे आपके साथ में पढ़ रहे थे, एक साल में एक इंस्टीट्यूट में लगभग 10,000 बच्चे आते हैं, उसमें से लगभग 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं या उससे कम। एक सवाल मेरा ये उठता है, मैं आपको शायद डिमोटिवेट भी करूँ या डिस्करेज करूँ इस चीज़ के लिए कि तैयारी नहीं करनी है। आप उनसे ये सवाल करना या अपने आप से सवाल करना कि यार 10,000 स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, 50 लोग सेलेक्ट हुए, 9,950 स्टूडेंट्स का क्या हुआ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हो सकता है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में उन्हें सक्सेस मिल जाए या किसी पीसीएस में सक्सेस मिल जाए, राइट, या फिर हो सकता है यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कहीं प्रोफेसरशिप में आ जाए, या केवी में भी वैकेंसी निकलती हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वहाँ पे भी बहुत अच्छी जरूरत होती है। तो कुल मिला के 100, 100 या 150 उतनी ही है, लेकिन 9,900 बच्चों का क्या हुआ, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी में आंसर एक निकलता है कि यदि यूपीएससी की तैयारी मैंने की तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, यदि मैं किसी और डेविएशन में आ गया या डिस्ट्रैक्शन में आ गया। तो सवाल मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस यूपीएससी के एग्जाम को हर साल भरने वाले लगभग 6 to 8 लाख फॉर्म्स होते हैं, वेरी करता है हर साल पे। देने वालों की जो नंबर्स होते हैं जस्ट इसके हाफ या 45% होता है, मतलब 3 lakhs अराउंड दैट। प्रीलिम्स में जो सक्सेस होती है वो जितनी वैकेंसी आई है, मान लो 1000 वैकेंसीज आई हैं, उसका 10 और 11 टाइम्स, मतलब 10,000 11,000 इतना सेलेक्ट हुआ। उन 11,000 में से या 10,000 में से यदि मेंस के लिए वो क्वालिफाई करते हैं तो 3 to 4,000, सॉरी मेंस उन्होंने 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लिखा, तो इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं तो 3 to 4,000, मतलब एक वैकेंसी पे 3 या 4 लोग मैक्सिमम, राइट। तो जो रेस है वो कुछ ही सीरियस डिजर्विंग एकदम क्लैरिटी के साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनमें है, और बाकी सब क्या है, क्राउड है। जो 10,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन था उनके मदर फादर का, या उनका 2 से 2.5 लाख या जो भी है 5 लाख रुपए की कार गिफ्ट होती डैड की, और उस कार के लिए पेट्रोल भी चाहिए होता, और उस कार में कोई हम सफ़र साथ में घूम रहा होता, थोड़े एक्सीडेंट ऊपर वाला करेंगे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसी वो भी चांस बनती, और वो शायद गाड़ी चोरी भी हो सकती थी, ऐसा ना हो कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो जिंदगी भर साथ रहेगा। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं, आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो बहुत कायदे के जर्नलिस्ट बनते हैं। इतना डीप एग्जाम जो एक पल के लिए आपको सब लोगों से दूर कर देता है कि हमें सबके पास करीब से जाना है, गिफ्ट ले लेके पूरा एकदम झोला भर के जाना है, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, खाली हाथ तो नहीं जाना है। हालांकि ऐसा वक्त आएगा जो इकोनॉमिकली डेप्राइव थोड़े से लोग हैं उनका सिलेक्शन हो जाए और उस दिन उनके पास पैसे भी ना हो कि यार मिठाई खिलानी है दोस्त को, सिलेक्शन हो गया, फिर दोस्त ही बोले कि नहीं यार हम मिठाई खिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा होता है। यदि मैंने स्वामी जी की बात की कि पहला मंदिर बना है, तो मैं आज एक ऐसे लड़के की भी बात करूंगा जिसको मैं जानता हूँ, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, 2016 बैच का है ये लड़का, अंसर शेख नाम है इसका, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा कहीं से भी आया है, किसी भी सोसाइटी से है, बराबर है। इसका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 साल की उम्र में, 20-21 साल। टीचर का रोल क्या होता है कि पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो माँ है वो लैंड लेबर जो होती है खेतों में वो काम करती हैं। घर एक मिला था 30,000 रुपये का, बीपीएल फैमिलीज को जो अलॉट होता है उसमें भी 3,000 रुपये का करप्शन में पैसे देने पड़े थे तब मिला था, और जिसकी वजह से उसको मोटिवेशन आया कि मैं सिविल्स की तैयारी करूँगा। इट कैन बी वन ऑफ द मोटिवेशन। छोटा भाई पैसे देता है, बड़ा भाई तैयारी कर रहा है कि नहीं मैं 2 महीने की नौकरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जो IAS बना वो खुद एक चाय सर्व करने वाला पर्सन। जैसे आप लोगों के कॉलेज में भी कुछ ऐसे एक्सपोजर्स होते होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा कराया जाता है एक्टिविटीज़, और सफाई भी करना, सारी की सारी चीज़ें होती थी। बिलीव मी, वो बच्चा जो सारे के सारे काम कर रहा था एक अमीर घर का भी होता, और यदि उसे IAS बनना होता तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट ये कहता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा। ये जो मेरा दोस्त है राजू फरहान, पे भी आपको ले जाने की कोशिश मैं करूंगा 3 इडियट के, ये मैं जो मेरा दोस्त है इसकी तरह से लाइफ जीऊंगा, मैं घर से पैसे नहीं लूँगा, घर वालों को नहीं बताऊंगा अपने स्ट्रगल के बारे में, और मैं तैयारी भी करूंगा। ऐसा क्या था कि उसके पास सहूलियत नहीं थी, वो काम भी करता था, परेशान भी था, लेकिन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है और वो एक सिविल सर्वेंट बन जाता है।
और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उस टीचर को जिसके पास उसके पिताजी लेके गए थे ये बोलने के लिए बचपन में कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये मिस्टर अंसर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस पुरुषोत्तम टीचर ने ये बोला, उसका नाम पुरुषोत्तम है, इस अंसर शेख को आप पढ़ाइए, इसको फीस देने की बात की जरूरत नहीं है, जब तक रहेगी फीस माफ रहेगी, यदि फिर भी स्कूल मांगता है फीस तो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो ऐसे टीचर के लिए तालियां कि तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मोटिवेशन देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके घर वालों के पास और आपके पास भी बहुत सारे पैसे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शायद थोड़ा बहुत इकट्ठा करनी है चीज़ें, लेकिन यदि आपको ये स्ट्रगल करना है, प्रोस्पेक्टिवली स्ट्रगल करना है, तो आप कुछ ऐसा करें कि अपने आप को एक आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी होता है ना, उसको अंदर से लेके आए। कि वो 3 जो दोस्त थे, एक तो राजू था, एक फरहान था और एक कौन था, रंजू। हाँ, तो किसी के भी घर में जाते हैं तो फरहान के पिताजी तो बोले कि देखो हमने एसी नहीं लगवाया है, लेकिन इसके यहाँ पे एसी लगवाया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये पढ़े, ये करियर बन जाए, और तुम इसके साथ में रहे तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम चले जाओ यहाँ से। उनका एक ही कंसर्न था, यार खाना नहीं खिलाया। फिर वो खाना खाने के लिए गए राजू के घर। राजू के घर में वो बेलन जिसमें पिताजी की छाती के जो बाल थे, कुछ आप लोग बड़े प्यूकिंग कंडीशंस में आ गए होंगे, वहाँ पे खाना मिल गया उनको। लेकिन लास्ट में वो दोस्ती भी रही, लास्ट में मिले, सबकी अपनी अपनी मंजिलें अलग थी। एक मैसेज था कि अपने इस पैशन को, इस इंटरेस्ट को अपने लाइफ स्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं और अपनी मंजिल को पाएं। दोस्ती अलग चीज़ है। कुछ लोग इसलिए ऑप्शनल लेते हैं क्योंकि दोस्त ने कोई किसी भी जेंडर का या अपोजिट जेंडर का भी हो सकता है, क्योंकि वो वाला ऑप्शनल लिया है। होता यह है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके साथ में दोस्ती भी नहीं रही थी बाद में। तो आपकी दोस्ती उससे नहीं है, इस चीज़ को लेकर आपकी दोस्ती आपकी मंजिल से है, और उस मंजिल का जो रास्ता है, जो रिसोर्सेज हैं, उससे है। वो दोस्त हमेशा आपके साथ ही रहेगा। You need to understand, you need to accept one thing, that people are not associated with you most of the time, but people are associated with the possibilities associated with you. I think you are getting my point, what I'm saying, including your mother and father. एक एस्पेक्ट सोशियोलॉजी का ये भी है कि मदर फादर इसलिए बच्चे को पालते हैं क्योंकि वो उनके ओल्ड एज का सहारा बने। ये गिव एंड टेक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो डंपिंग कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में कि जो ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने पैदा किया और आपको एक अच्छा शरीर दिया हुआ है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, राइट? सो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से कि इंस्टीट्यूशन, देन कम्स टू कॉलेज का ब्रिज टू IAS, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जाम और शुड नॉट प्रिपेयर। ये तीनों चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। मैं कंटेंट को बहुत रिड्यूस करके इसका जिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर पाया। एक लास्ट 4th टॉपिक जो था वो ये था, लाइफ स्टाइल ऑफ UPSC एस्पिरेंट एंड देयर आफ्टर। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो आज की लाइफ स्टाइल है UPSC के एग्जाम की, और जब आप तैयारी कर रहे होंगे या देयर आफ्टर, क्या अंतर होगा दोनों तीनों चीज़ों में? अभी तो ये होता है कि सेल्फी निकालते हैं अच्छे अच्छे कैमरे के साथ में, तो उस वक्त थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि मन ये कहेगा कि यार सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है, राइट? तो उस वक्त तक थोड़ा सा पहुंचने के लिए आपको ये जो मोबाइल है ना, इसे थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। मुझे याद है कि 2 साल के लिए एक बार मेरा मोबाइल एक्चुअली गिर गया, नॉन स्मार्टफोन था, आज से मैं 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा खरीदना ही क्या है। वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल थे, और मेरा जो कनेक्शन जिन चीज़ों से जितनी गहराई से बना, शायद वो हर साल मैं शायद 15-20 साल का सफ़र तय कर रहा था। इफ़ वी आर फ्रॉम मेट्रो सिटी, वी कैन डील विद मैनी डिस्ट्रैक्शंस, बट इफ वी आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया, we are coming from remote area, we are not in habit to deal with many of the distractions, many of the exposures all of a sudden. More chances are there that you will get into those things, and given that fact that you are in the bracket of 20 to 25, more chances. So mobile is something that is to be kept away, or it should be regulated its use, like after evening when you have lived whole your day into the preparation and to the meaningful things that you have thought. वो एक चीज़ है। देन एक सेकंड चीज़ है कि आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा लाइफ स्टाइल, एक प्लान्ड वे में चलने की, कि आपको कल का पता होगा या परसों का पता होगा कि आपको बेसिकली क्या काम है। इवन आपका फूड भी मैनेज हो जाएगा कि कल सुबह आपको क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और शाम को क्या खाना है। अभी तो बहुत रैंडम चलता होगा, फ्रेंड्स के ग्रुप में क्या खाना है जी, चलो प्लान बन गया तुरंत चले गए। थोड़ा सा ये वाला अंतर आ जाएगा। और 25%
एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के आगे चल के ये होंगे कि जैसी मस्ती अभी होती है कॉलेज में वैसी होनी भी चाहिए थी। क्योंकि यदि दिल जो हमारा बच्चा है, यदि उस बच्चे को लॉलीपॉप या चॉकलेट नहीं खिलाओगे, वो सब कुछ मतलब जो मन का जो रायता है वो फैला देगा। सो ऑल इन ऑल आपको अपने ब्रेन से, अपने माइंड से बहुत एक गैलोपिंग हॉर्स की तरह काम लेना है। तो फिर आपको अपने मन को भी खुश रखना पड़ेगा। मन खुश कैसे रहता है? आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से मैं यदि बात करूं तो आपकी हॉबीज़ क्या है? क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आधे घंटे का लगभग, उसमें पूरा का पूरा एसेंस चला जाता है। उसमें 10 आंखें एक ही पर्सन को देख रही हैं। हालांकि लड़ाई के तौर पे बात करें तो एक तरफ अकेला, दूसरी तरफ 5, ये तो गलत है। और वो भी इतने बड़े बड़े ओलंपियाड अनुभवी लोग। 10 आंखें 60 ईयर्स अराउंड एज की आपको देख रही हैं और आपकी अकेली जो टंग है उसको जवाब देने के लिए बैठी हुई है। तो वो जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपका पूरा का पूरा स्क्वीज आउट कर लेगा। लेकिन उस आधे घंटे की रेसिपी के लिए आपको अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट 10 सेकेंड और लेस that is taken by a sprinter like Usain Bolt or like that, but how much effort and time goes into it? 10 सेकेंड में एक स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है, उससे भी कम है, लेकिन कितना एफर्ट जाता है उस 10 सेकेंड को बनने में। हॉबी में कई लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मेरा काम है चेस खेलना, लेकिन उस चेस के लिए आधे घंटे तक वो 10 जो आंखें हैं या 5 लोग हैं जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं वो बात कर सकते हैं। आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि हैविंग सेड दैट ये इतना सब कुछ हार्ड नहीं है जितना मैंने आपसे कह दिया। क्या ये आपके सारे के सारे इंजॉयमेंट, कलरफुल एज, वाइब्रेंट एज के साथ में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को पकड़ो जो आपको तैयारी नहीं कराए, तैयारी का इंजॉयमेंट कराए। आपको तैयारी ना कराए, उस तैयारी का स्वाद चखाए, पालक पनीर की तरह या मटर पनीर की तरह। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? उस तैयारी को इस तरीके से कराए कि वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ना हो, आपके लिए इन्फोटेनमेंट हो। यदि एंटरटेनमेंट है जिंदगी में, चाहे वो तैयारी हो रही है या उसके बाहर, तो जिंदगी में एक कलर है, जिंदगी में एक ग्रेवी है, और वो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कल हो ना हो। एंड करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यदि सेलेक्ट नहीं होते हैं या हो जाते हैं, कुल मिला के एक चीज़ होगी, एक क्वेश्चन मार्क 25 के बाद में आपके माइंड पे लगेगा, हु एम आई, व्हाट आई एम डूइंग, राइट? तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टुडे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एस्पेक्ट्स की इंस्टीट्यूशन हमारी कौन सी होगी। एंड हम लोगों का एक फ्रेम, या मेरे साथ में आए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो सीनियर रिटायर्ड पीपल हैं, उन लोगों का गाइडेंस तो है ही, बट एज अ टीचर भी मेरा एक टेक अवे है कि मुझे अपने आप को इस तरीके से रखना है कि एक मेंटरशिप, एक हैंड होल्डिंग लेके चलना है। क्योंकि 400 स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर इन अ क्लास। एक स्पैन ऑफ अटेंशन के हिसाब से यदि मुझे एक बार में 10 लोगों से बात करनी है, तो मुझे पता है कि मैं बारी बारी से उनसे बात कर सकता हूँ। मुझे किसी बच्चे ने ये कहा कि सर मुझे अकेले में आपसे डाउट पूछना है, तो मेरे पास टाइम है कि मैं उसे सुन सकता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि वो अकेले में ही पूछना चाहता है, और वो जाएगा किसके पास, राइट? तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम में, ऐसे हम इनिशिएटिव्स में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं जो बहुत एक फिल इन द गैप वाली कंडीशंस को फुलफिल कर पाएँ और आप लोगों की जो नीड है उसे पूरा कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम योर ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर स्टोरीज, दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू गाइस। एंड इसके अलावा यदि हमारी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स को पूरा नहीं कर पाई हैं, तो लास्ट में हम सेशन भी रखेंगे। उसके भी अलावा यदि कुछ बातें हम पूरी ना कर पाएँ, तो आपके पास हमारे जो चीज़ें दी हुई हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आपके कोई भी पर्टिकुलर सवाल है जिसमें आप 1-to-1 बात पूछना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मेरा दोस्त सुने या मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को ये कई सारे लोगों से सजेशन आया कि 1-to-1 सेशन जो होता है, बच्चे उसी फादर की तरह बात करना चाहते हैं जो चर्च में होता है कॉन्सेप्ट, कि भाई अकेले में बात भी हो जाए, कन्फेशन भी हो जाए, और आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाए, और आपका मन भी थोड़ा सा शांत हो जाए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि अलेक्जेंडर हूँ या लियोनार्डो विंसी हूँ, इन लोगों की यदि आप लाइफ उठा के देखो तो इन्हें कॉलेज या स्कूल का सहारा उतना नहीं मिला। इनके पास इंस्टीट्यूट या कोचिंग नहीं थी, इनके पास क्या था? इंस्टीट्यूशन था। इन्हें घर में ही पढ़ने को मिला था और घर से ही सब कुछ इनका निकला था, जिन लोगों के बारे में हम लोग सुनते हुए चले आए। लियोनार्डो विंसी आप जानते ही होंगे, अलेक्जेंडर, ये जो टेलीफोन है, हेलो हेलो बोलते हैं, ये बेसिकली उनकी गर्लफ्रेंड जो वाइफ बन गई बेल साहब की, तो ये हेलो वर्ड वहीं से निकल के आया है। उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं मिली, किसी कॉलेज या स्कूल से नहीं मिली, डेफ थे।
और एक डेफ इंसान, फिजिकली हैंडीकैप्ड इंसान कितनी परेशानी, रिसोर्सेज भी नहीं है, उस टाइम पर ऐसा आविष्कार करके आपके सामने ला देते हैं। तो आप लोग तो कितने कैपेबल हो, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन चल रहा है आज की डेट में, तो बाढ़ के अलावा जेमिनी आ गया है, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, राइट। इट कैन बिकम अ बून बट इट कैन बिकम अ कर्स ऑल्सो फॉर यू, बिकॉज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या पढ़ें, कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो आपको बेसिकली गागर में सागर भर के आपकी लाइफ का एक साल जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मंजिल है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं जो नया है वो किनारे पे आपकी लग जाए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, अपने दोस्त अपने चारों ओर ऑब्जर्व जरूर करें। बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि कुछ इग्नोर करना भी ज़रूर है। तो कबीरदास जी की वही पंक्तियाँ मेरे को दोबारा याद आ जाती हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हायरार्की के हिसाब से आप सबसे बेस्ट हैं, आप अपने लिए ठीक हैं। सूरज के सामने दीपक का कोई वजूद नहीं, लेकिन अंधेरे के सामने तो थोड़ा है। माना कि अंधेरा है, मगर दीपक जलाना किसको मना है या किसने मना किया है, राइट। हायरार्की में आप जहां पर भी खड़े हुए हैं, आपके नीचे लाखों लोग हैं, आपके ऊपर बस कुछ ही सैकड़ों हैं। तो उनको देखने के बजाय आप नीचे देखें और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते जाएं, मोटिवेशन बहुत अच्छा खासा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई थिंक मैं आपके जो इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन वाले एस्पेक्ट को इनलाइट कर पाया, और आगे चल के आप इस इंस्टीट्यूशन की खोज में ही रहेंगे। एक भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक सक्सेस का हिस्सा बनेंगे, बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your inspiring words. I am sure that students have gained new perception and motivation. Now, without much ado, it's the time that we invite our next guest of honor, for who we all have been waiting for. I feel honored to finally introduce you all to Mr. Amol Srivastava, IAS Batch 2018, Agmut cadre, currently rendering services to the nation as Assistant Director in Delhi, and who previously served as Deputy Commissioner and District Magistrate for the Nongnatai District of Mizoram. Sir has secured a prestigious rank of 83 in CSE in 2018. Sir has done his schooling from DPS Noida and is an alumni of VIT Vellore. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you so much for such a kind introduction. And Dr. Shashank, coordinator for Udan, Mr. Naman, co-coordinator, and Mr. Nitin. Nitin sir, I know him from last 5 years, so it's good to share stage with him. I'd like to thank Udan Civil Services Society of the college for having me here. मैं भी हिंदी में ही बात करूँगा। और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सर, मुझे आप लोगों से शिकायत है कि नितिन सर को तो आपने 4 टॉपिक्स दिए, मुझे एक भी टॉपिक नहीं दिया गया। तो मैंने सोचा कि आईएएस ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैसे क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी खोजी जाए। तो फिर जब नितिन सर को सुना तो आई वांट टू थैंक हिम ऑल्सो कि उन्होंने मेरा काम इतना आसान कर दिया है कि सब चीज़ें उन्होंने बता ही दी हैं, और इतना मुश्किल भी कर दिया है कि मेरे पास कुछ है नहीं बताने को। तो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच रही सर की, एंड किस तरीके से एक पूरा इंस्टीट्यूशन है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसको अलग अलग तरीक़ों से जोड़ के सर ने जो बताया, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके आगे थोड़ा और आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो सर ने जहां बात ख़त्म की, मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? सेकेंड ईयर के हैं? थर्ड ईयर के 2 हैं। चलो, बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट जो भी है अच्छा है। और आपको मास्टर्स का स्टूडेंट है कोई यहाँ? अच्छा, तो अच्छा, एकदम फ्रेश क्राउड है सर, एकदम। अभी 12th आप लोगों ने 12th अभी किया होगा 2023 में, और फर्स्ट ईयर अभी ख़त्म होने वाला होगा आपका। ओके, तो आप लोगों के पास अभी पूरा टाइम है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। एंड जब नितिन सर ने पूछा कि कितने लोग यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियसली तैयारी करने आए हैं, तो मुझे लगा कि 60-70% हाथ उठाएंगे, और बाकी लोग वो हैं जो सोसाइटी के
फ्रेंड्स होते हैं सोसाइटी मेंबर्स के जिनको भेजा जाता है सिर्फ सीटें भरने के लिए। तो मुझे लगा कि उनको फिर पार्टी ले लेनी चाहिए आज शाम को अपने कोऑर्डिनेटर फ्रेंड से, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अराउंड 95% 98% लोगों ने हाथ उठाया। दैट मीन्स सब लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, और जो 2 कंफ्यूजिंग एस्पिरेंट्स थे जिनको थोड़ा कंफ्यूज थे वो हाथ उठाने में भी थोड़ा कंफ्यूज थे। तो इससे यहाँ पे सबको ये सीख मिलती है कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और हमें उनको अगर अपनी सिचुएशन पता है तो हमें उनका कॉन्फिडेंस के साथ सामना करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पता है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी एस्पिरेंट्स हैं या नहीं भी हैं तो कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे। जैसे सर ने 3 इडियट्स का कई बार एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे वो प्री राजुलाइजेशन, जो फरहान राजुलाइजेशन ऐसा कुछ वर्ड था, तो उसमें कुछ नया सीखने की बात की गई थी। तो आज हम कुछ नया सीख के जाएंगे सब लोग। और जहाँ तक उड़ान सोसाइटी की बात है, तो मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज, इसी कॉलेज में कोविड टाइम पे कुछ सेमिनार्स किए थे। तब शायद सोसाइटी नहीं थी ये, बट 1-2 सेमिनार्स मैंने ऑनलाइन किए थे। बट आई एम फॉर्चुनेट कि आज मैं फिज़िकली इस कॉलेज में आया हूँ। एंड मैं इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर रहा था आपका sbsc.udan का, तो पता चला कि आप लोग ये वाले इवेंट्स कई करते रहते हैं। एंड पहले भी कई ऑफिसर्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो आए हैं, और जब शशांक सर और नमन सर को टाइम मिलता है तो वो भी 1-2 सेशंस ले लेते हैं न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह पे। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके फैकल्टीज़ जो हैं वो भी आपको गाइड करने में और आपका साथ देने में अपने एकेडमिक शेड्यूल से टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट फैकल्टीज़ आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो अभी फर्स्ट ईयर के हैं। तो जैसे सर ने शुरुआत की कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं उसी से शुरुआत करूँगा कि सब लोग बनना तो चाहते हैं पर क्यों बनना चाहते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में तो हमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता है चीज़ों का। तो कई लोगों को उनके पेरेंट्स ने कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि तुम सिविल सेवा में आओ, कोई या तो IAS बनो या PCS बनो। तो वो लोग वही सपना आगे लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको खुद लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है, एंड ये बहुत अच्छी एक स्ट्रीम है जिससे मैं अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकता हूँ। लोग उसके लिए भी तैयारी करते हैं। कुछ लोग इसलिए तैयारी करते हैं कि एक समाज में रिस्पेक्ट हो, जिसको हम कोलोकियली पावर भी कहते हैं, जो कि अब सर्विस में आने के बाद पावर बहुत ही एक शैलो वर्ड लगता है मुझे। बट जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें पावर, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें, लाल बत्ती और वो सब चीज़ें ज़्यादा वो करती हैं, फैसिनेट करती हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले कैटेगरी में होते हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो जो भी है मैंने 4 कैटेगरीज बताई, इसमें आप डिसाइड कर लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पर फिर उस रीज़न को अपना रीज़न बना लीजिए। भले ही वो ठुकरा के मेरा प्यार भी हो, पर फिर वो अपना रीज़न होना चाहिए। फिर वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको स्टॉक नहीं करना है इंस्टाग्राम पे जाके कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, फिर तैयारी करनी है अच्छे से। तो रीज़न जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। भले ही आपके दिमाग में वो बीज आपके पेरेंट्स ने बोया है, आप उस पर काम करिए आगे, बट वो रीज़न जब तक आपका अपना नहीं होगा तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो या चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो आपको वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर करा सकता जब तक आपके अंदर ये लगन नहीं होगी कि ये मेरा एग्ज़ाम है, मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ इस पर काम करना। जब तक वो किसी और का ड्रीम रहेगा आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना रीज़न अपने हिसाब से सोच लीजिए। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम अगर किसी के कोई पर्सनल डाउट्स हैं तो हम उसको टेकअप करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि हम IAS क्यों बनना चाहते हैं। फिर अब हम आते हैं कि IAS या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो ब्रॉडर टर्म होता है, इसको एक ये मिसनॉमर है, IAS एग्ज़ाम नहीं होता है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है जो UPSC कंडक्ट कराता है, जिसमें देश की लगभग 23-24 जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जिसमें IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, ऑडिट अकाउंट सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आपको आपके रैंक के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट होती है। जैसे आपके कॉलेज में काउंसलिंग होती है कि आपकी जो भी रैंक आती है उसके हिसाब से आपको मिलता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। वैसे ही सिविल सर्विसेज में भी होता है, अगर आपकी रैंक ऊपर है और आपकी जो प्रेफरेंस दी होगी आपको पहला उसका मौका दिया जाएगा। तो इसको हम
IAS एग्ज़ाम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस IAS ही होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आपका रीज़न अपना हो जाएगा तो जो आपका रीज़न होगा आपकी वो सर्विस होगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनको यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस IPS डाला। कुछ लोग जो अकाउंटेंसी और कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उन्होंने रेवेन्यू सर्विस को प्रेफरेंस दी है। तो इसमें ये कोई हायरार्की नहीं है सर्विसेज की, तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को IAS एग्ज़ाम को एक मिसनॉमर कहूँगा। ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, सर्विस आपकी सिलेक्शन होने के बाद मिलती है। तो अब बात यह है कि जब IAS अब बने कैसे, तो जब मैं इसीलिए मैंने पूछा था कि अभी कॉलेज में मतलब आप कौन से ईयर में हैं आप लोग। तो एक चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मेहनत तो इंसान करता ही है। आप सब लोग बहुत मेहनत करके इस कॉलेज में भी आए, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में आए हैं। आगे भी अगर आप मास्टर्स करते हैं या लाइफ में कुछ भी करते हैं, मेहनत तो आप करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट मेहनत के साथ सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 मीटर या 400 मीटर रेस भाग रहे हैं और आप उल्टी दिशा में भाग रहे हैं तो आप चाहे कितना भी तेज़ भाग लें आप कभी जीतेंगे नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस एग्ज़ाम का आइडिया बहुत अच्छे से लगे कि आप क्या तैयारी करने जा रहे हैं। जैसे नितिन सर ने बोला कि ये तो बहुत आसान, सबसे आसान एग्ज़ाम है। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ UPSC के बारे में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, ये सब पढ़ने के लिए सबसे आसान एग्ज़ाम है और क्लियर करने में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। जब आप तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तो आपको NCERT बुक्स ही करनी है, जो आप अभी ऑलरेडी कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ के आए हैं, वही किताबें हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ना है जो हम डेली वैसे ही आता है हमारे घर में, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो तैयारी तो आपको उसी से करनी है, बट क्योंकि वो इतनी आसान तैयारी है कि हर कोई कर सकता है वो चीज़, इसलिए क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो वाई इज़ UPSC और सिविल सर्विस एग्जाम द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम? बिकॉज उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। आप लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं और उसमें 700-800 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो जो लोग भी मैथ्स में अच्छे हैं वो देख लीजिए, उसमें पॉइंट 0 पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ और आते हैं और फिर उतनी परसेंटेज होती है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम की निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये बहुत लेटर स्टेज की बातें हैं, इन पर अभी भी आप मत ध्यान करिए। बस ये मैं बोलूँगा कि IAS का एग्ज़ाम एक अलग एग्ज़ाम होता है जो आप अभी तक एग्ज़ाम दे रहे हैं और या आगे आके आप एग्ज़ाम्स देंगे। आप हमेशा कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, चाहे स्टेट PCSE करिए, बैंकिंग की करिए, आप नेट की करिए, JRF की करिए। हर एग्ज़ाम का अपना एक आउटकम होता है कि वो एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। अगर इतने महानुभाव लोग बैठ के एक एग्ज़ाम का पैटर्न बना रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर सिलेबस सेटअप किया जा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत डीप सोच होती है। तो अगर जब तक आपको वो सोच समझ नहीं आएगी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि IAS एग्ज़ाम से आप क्या करने जा रहे हैं। आप भले ही आप NCERTs पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेंगे, आप सोशियोलॉजी लेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, बट आप उससे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर नहीं बनने जा रहे हैं आप, या आपको PhD नहीं मिल रही है उस सब्जेक्ट में। आपको वो सब्जेक्ट लेके आया, वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आपको एक ऑफिसर बनना है जिसमें आप उन सब नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। तो जो कुछ स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ कॉलेज से जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको मैं गाइड करता हूँ, वो अपने सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ दिखता नहीं है और वो उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एकेडमिकली साउंड हो जाते हैं, जिसकी इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कोई मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई उसमें आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसकी एकेडमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट इस एग्ज़ाम में उसकी एकेडमिक इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, रैदर देन उसकी एप्लीकेटिव यूटिलिटी ज़्यादा है। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंकिंग से आप एक बैंक के जो काम होते हैं आप उसमें आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, वो पर्टिकुलरली पेपर्स एंड कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा काम आती है। तो वो मैं कई सारे एस्पिरेंट से मिलता हूँ, सभी बोलते हैं सर मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, तैयारी तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, बट कभी कुछ हो नहीं रहा है। वो इसी वजह से नहीं होता है कि आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को लेके आप अगर एक ऑफिसर बनेंगे, तो एक ऑफिसर का अगर मैं एक शब्द में काम बोलूँ तो वो होता है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे कुछ चीज़ों को डिसाइड करना होता है कि जो जनता के लिए, जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो चीज़ें, वो आपको डिसाइड करनी होती हैं अपने जो भी आपने अभी तक नॉलेज गेन करी है उसके बेसिस पे। हो सकता है वो आप उस दिन पहले दिन हो आपका जॉब पे, आपको उस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं हो, बट आपका एक्सपीरियंस और आपका इंस्टिंक्ट जो होता है उसके हिसाब से आपको
चीज़ों को डिसाइड करना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। जब तक आप जैसे कॉलेज में भी जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी मिलेगी। आप बीए करेंगे, आप एमए करेंगे, तो वो सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम है। वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपकी एकेडमिक स्किल्स, आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने निपुण हैं या कितने स्किल्ड हैं आप। तो वो भले ही बुक सेम रहेंगी बट उनको पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। सिमिलरली जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, जब वो 10th क्लास के लिए पढ़ी जाती है तो अलग तरीके से पढ़ी जाती है, जब वो यूपीएससी के लिए पढ़ी जाती है तो अलग तरीके से पढ़ी जाती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर अब मैं आता हूँ कुछ मिथ्स जो बहुत मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मुझे लोग भेजते रहते हैं कि ऐसा होता है, आईएएस का पेपर ऐसा होता है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं आज सब लोगों को वो सब मिथ्स क्लियर कर लूँ। सबसे पहले तो ये मिथ होता है कि सिर्फ जो लोग आईआईटी आईआईएम जाते हैं वही लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं होता। हर एग्ज़ाम बहुत ही एक इक्वलाइज़र है, एक ओपन प्लेटफॉर्म देता है सारे एस्पिरेंट्स को, हर फील्ड से आए हुए, प्रोवाइडेड कि आपने उस एग्ज़ाम को अच्छे से समझा हो। जो मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी, अगर आपने एग्ज़ाम समझ लिया है तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ को लेके। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका जो ग्रेजुएशन होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेते। मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया है। तो ये बहुत फ्रीडम दी है। अगर यूपीएससी ने हमें फ्रीडम दी है तो कुछ सोच समझ के दी है कि आप लोग ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप शायद मुझे क्वेश्चन करें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो के आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया। बट इसको मैं दूसरी तरीके से सोचता हूँ कि अगर यूपीएससी ने मुझे फ्रीडम दी है तो मुझे चेक करना चाहता है कि मैं कितना अडेप्टेबल हूँ नई नई चीज़ों के लिए। तो बहुत सारे मेरे पॉलिटिकल साइंस के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, वो लोग नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं, उनसे ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर में, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम को समझा कि हाँ एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक बहुत ही बहुत अच्छा इक्वलाइजिंग प्लेटफॉर्म है यूपीएससी का। आई थिंक देश में सर यही एक एग्ज़ाम होता है जो सबके लिए बराबर होता है। बाकी जो कैट के एमबीए के एग्ज़ाम्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की तरफ अलाइंड होते हैं, जो यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक रिसर्च के एग्ज़ाम्स होते हैं वो दूसरी तरफ अलाइंड होते हैं। बट यूपीएससी इज़ लाइक वो उसमें सब आते हैं, उसमें डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, आईआईएम से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। बट इसका ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी हो या आईआईएम से एमबीए किया हो, या अगर ह्यूमैनिटीज़ में भी हो तो सिर्फ लेडी श्री राम कॉलेज या एसआरसीसी या सेंट स्टीफेंस वाले ही सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके अंदर कहीं से भी कोई ये डाउट आ रहा है तो इसको अपने मन से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, पर तैयारी आपको मेहनत के साथ करनी पड़ेगी। दूसरा ये डाउट होता है कि जो लोग एकेडमिकली बहुत साउंड होते हैं वही लोग सेलेक्ट होते हैं कि हमें तो 95% से ऊपर ही लाने होंगे हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेज में। ऐसा भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही होता कि 95% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं हमेशा इस एग्ज़ाम के लिए, तो यूपीएससी को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। वो कॉलेजेस में जाती, पूछती भाई जिसकी 9.5 9.6 से ऊपर सीजीपीए आ जाओ, वो बस लेके आती, वो सबका सिलेक्शन हो जाता। तो इसका मतलब अगर सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिला है और 60% 65% शायद उन्होंने कट ऑफ रखी है किसी भी स्ट्रीम में, तो इसका ये मतलब है कि यूपीएससी को ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक टॉपर्स चाहिए। इनफैक्ट ये सुनने में आता है, मैं इसको श्योर तो नहीं कह सकता, कि जो लोग एकेडमिकली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं यूपीएससी फील्स कि आप फिर एकेडमिक्स में जाइए, हमें रिसर्च में भी लोगों की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या आपने किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा डीप में आपने पढ़ाई कर रखी है तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी फील्ड को परस्यू करें। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि इसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 95% 97% मार्क्स लाने हैं। बट अगेन आई विल कम बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि आपको मेहनत अच्छे से करनी है और एग्ज़ाम को समझना है, आपका हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ होता है वो ये होता है, जिसके चक्कर में लोग तैयारी शुरू ही नहीं करते, कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में तो एवरीथिंग इज अंडर द सन यू हैव टू स्टडी, जो कुछ है वो सिलेबस है। पर जब आप तैयारी करेंगे, आप जब अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं या आप खुद से ज्वाइन करेंगे, या अगर आप आगे सर से अपने कोई सेशंस कराते हैं 1-to-1, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस बड़ा होता है, बट ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सन के अंडर जो कुछ है वो आपको पढ़ना होता है। आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी बात हुई कि आज एक मंदिर बन रहा है देश के बाहर, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया है वो चीज़ कि हमारी सॉफ्ट पावर को लेके। इसमें कहीं पे भी रिलीजन और एथनिसिटी का एंगल नहीं है,
ये हमारी जो देश की सॉफ्ट पावर है उसका डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यूपीएससी। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक प्रिंसिपल बनाया था कि यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो आप कंफ्यूज हो गए। समथिंग अबाउट एवरीथिंग मतलब जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में, तो क्यों, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या हमारे देश में फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ही स्टेट्स में क्यों ज़्यादा चल रहे हैं, सदर्न स्टेट्स में क्यों नहीं वो इश्यूज आ रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ जानना है। तो वो हो गया एवरीथिंग अबाउट समथिंग्स। और कुछ चीज़ें हो गई जो जनरल सबको पता होनी चाहिए हमारे देश के बारे में, दुनिया के बारे में, जो शायद इस साल या अगले 1-2 साल के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उनके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। तो वो हो जाएगा समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो ये इसका आइडिया होता है। ये हो गया तीसरा मिथ। चौथा मिथ जो होता है वो ये होता है कि हमें बहुत सारी किताबें लेनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या होता है कि लोग इतनी किताबें खरीद लेते हैं हर जगह से, और कि वो कलेक्टर बनने की जगह बुक कलेक्टर बन जाते हैं वो। तो उनके घर पे बुक्स का अच्छा कलेक्शन होता है, पर वो कभी कलेक्टर की कुर्सी पे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि वो उस बुक्स में ही वो रह जाते हैं। तो क्योंकि आपको समझना है कि पेपर तो आपका वो है जो आपको 3 घंटे में जो 200 वर्ड्स लिखने हैं आपको वो लिखने हैं। अब आप वो 1000 बुक्स पढ़ के लिखें या एक बुक पढ़ के लिखें तो ये आपके ऊपर है। तो कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागिएगा कि मैं 10 बुक से पढ़ लूँ। कोई भी एक बुक ले लीजिए, सब सारी बुक्स अच्छी हैं, पर ये नहीं कि किसी ने आपके दोस्त ने कुछ बताया कि अरे यार पेपर ना उस बुक से आता है, जैसे कॉलेज में होता है ना कि वो वाले नोट्स, इसके नोट्स, उस सबसे कुछ होता नहीं है। आप जहाँ पे भी आपको लगे कि एक चीज़ को 100 बार पढ़िए, 100 चीज़ों को एक बार मत पढ़िए। तो ये हो गया चौथा मिथ। तो ये कुछ मिथ्स थे इनके बारे में। अब आप लोगों ने एस्पिरेंट सीरीज़ तो देखी है, जैसे सर ने बोला है, तो उसमें बड़ा एक फेमस डायलॉग है, प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है प्लान बी। जब भी मैं कॉलेज में कोई सेमिनार करता हूँ तो लोगों के दिमाग में प्लान बी होता है। तो देखिए, प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान बी इज़ नॉट फॉर लूजर्स, प्लान बी इज़ फॉर प्लानर्स, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी ओनली। तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी में जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो बेटर रहेगा। प्लान बी कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी सर ने भी बताया बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्टेट पीसीएस है, बैंकिंग है, आपका एकेडमिक नेट है, जेआरएफ है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो उसमें पर प्लान बी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, एंड आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैं इसकी कब मुझको प्लान बी की कब ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, प्लान बी के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो प्लान बी उनका प्लान ए बन जाता है, और यूपीएससी वो कर ही नहीं पाते हैं। मेरे खुद के कई दोस्त हैं जिनमें साथ में हम तैयारी कर रहे थे, तो उनका प्लान भी था कि भाई उनको एसबीआई में बैंक पीओ बनना है। अब वो 2016 में हम दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मैंने तो प्लान बी के बारे में उस समय तक नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि 2 साल में अच्छे से अटैम्प्ट देता हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरे 2 अटैम्प्ट्स में नहीं हुआ तो फिर मेरा नहीं होगा। इतनी मुझे ऑनेस्टी और इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है कि अगर मैंने 2 साल तक के बाद मुझे पक्का प्लान बी के बारे में सोचना ही सोचना है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन लोग जो दोस्त थे उनका कहीं क्लियर हो गया, बैंक में क्लियर हो गया, स्टेट सर्विस में क्लियर हो गया। उसके बाद वो इतने बिजी हो गए कि वो यूपीएससी दोबारा मेंस तक नहीं दे पाए उस साल का वो। और मैं जानता हूँ कि अगर वो देते तो शायद मेरे से ज़्यादा अच्छे उनके मार्क्स आते। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि प्लान बी इतना हावी ना हो जाए कि प्लान ए बन जाए। तो उस तरीके से आपको सोचना है। प्लान बी कुछ भी हो सकता है। आप जो आपके मेंटर्स हैं, शशांक सर यहाँ बैठे हैं, नमन सर हैं और नितिन सर हैं, अगर आपको इनसे डिस्कस करना है कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, उनको ध्यान में रखिए। आप इतने अच्छे कॉलेज से हैं, डेफिनेटली आप ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपको दिक्कत आएगी किसी चीज़ में। तो प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब प्लान बी, प्लान ए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कब करनी है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे तो सब, हाथ तो सबने खड़ा किया, पर शुरू कब करनी है। तो शुरू तब करिए जब आपका मन करे। सिंपल, चीज़ों को सिंपल रखिए। जब आपका मन करे तब आप करिए। आप बिल्कुल भी लेट नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में है वो भी लेट नहीं है, जो थर्ड ईयर में है वो भी लेट नहीं है, जो मास्टर्स कर रहा है वो भी लेट नहीं है। यूपीएससी ने 32 ईयर्स तक का आपको टाइम दिया है। तो आपके पास 21 साल से लेकर 32 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए पूरा टाइम है। आप उसमें
जब आपका मन करे। बट फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट पे आऊँगा, आपको खुद को कन्विंस होना पड़ेगा कि ये मेरा एग्ज़ाम है, मुझे देना है एग्ज़ाम, तभी जाके आप उसमें कुछ कर पाएंगे। बट नाउ कमिंग टू द रियलिटीज़, लास्ट 3-4 साल से जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत डीप लर्निंग की ज़रूरत है, कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, एग्ज़ाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो अगर आप अभी कॉलेज में हैं और आपने सोच रखा है कि मुझे तैयारी करनी है, तो अभी एक सीरियस प्रिपरेशन मत करिए। जैसे मैराथन होती है, मैराथन आप भागते होंगे, या एक 400 मीटर या 1600 मीटर की जो रेस होती है उसमें आप भागते हैं, तो आप इनिशियली बहुत फोर्स नहीं लगाते हैं। आप पहले आप वार्म अप होते हैं थोड़ा, फिर आप अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, फिर आप और पीक पे आते हैं, और उसके बाद जब लास्ट के फाइनल 1-2 लैप्स बचते हैं उसमें आप फाइनल अपना फोर्स दिखाते हैं। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं वो ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें तो बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादा आपको इसमें इतना डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप सेकंड ईयर तक ही छोड़ देंगे, जब आपको दिखेगा कि आपके दोस्त लोग तो बाहर पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी सीपी हैं, कभी हौस खास हैं, कभी कहीं हैं, और आप पढ़ रहे हैं, आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नितिन सर ने भी बोला था कि बैलेंस बना के रखिए। जो अभी कॉलेज लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो कॉलेज लाइफ ही हमें याद आती है कि जो दोस्त थे, बाकी सब शायद कहीं प्लेस हो चुके होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, बट जब जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए कॉलेज लाइफ बहुत ज़रूरी होती है। कॉलेज लाइफ में आप जो कॉलेज में सीख रहे हैं, जो अपने फैकल्टी से सीख रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड्स हैं, सब कुछ सब ज़रूरी है लाइफ में, सब कुछ सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक वो बैलेंस बड़ा रहना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सोचिए कि आप एक अभी से प्लान बनाइए कि मैं अगले 3 साल इसको कैसे टेपर करके मैं तैयारी करूं, जिससे जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचूं या जब मैं थर्ड ईयर के बाद पहुंचूं तो मेरी तैयारी पूरी हो जाए। तो उस तरीके से आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस अच्छे से समझना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो, अगर मैं सेशन में आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, वो 5 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें सवाल पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स में आंसर्स कैसे लिखे जाएँ। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और मेंस में आंसर राइटिंग होती है, तो आपने अपने जो 5 मिनट आपको मेरे साथ मिले या किसी और टॉपर या किसी और एक्सपर्ट के साथ मिले, आपने वो गवा दिए। वहीं पे टाइम ख़त्म हो जाता है कि जब आपने अपना होमवर्क तो किया नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी हो, और उसमें डेफिनेटली मेंटर्स हर स्टेज पे अवेलेबल होते हैं जो आपको गाइड कर सकेंगे कि हाँ कैसे आपको जो दिक्कतें आ रही हैं। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो आपको दिक्कतें आएंगी। अभी आपको पैटर्न ही नहीं पता, सिलेबस ही नहीं पता, तो फिर आप अपनी दिक्कतें पूछेंगे कैसे किसी से। दिक्कतें वो होती हैं कि सर मैंने इस चीज़ को 3 बार पढ़ लिया है, बट मेरे अभी भी आंसर्स जो हैं वो साइलेंट करते हैं, जो आंसर्स हैं वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर आप तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं तो उसका बस यही तरीका है कि आप या तो कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप एक प्रॉपर आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कौन से महीने में आपको कौन सा सिलेबस ख़त्म करना है, कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, किस सब्जेक्ट की आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस बुक से करनी है, ये आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए ये वाली चीज़ आपके लिए। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का कि कैसे करना है। मैं ज़्यादा फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं अभी, आपको इतना मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ। बस बेसिक एक आइडिया देना चाहता हूँ कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। एंड मैंने जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई हैं सर्विस के बारे में, एग्ज़ाम के प्रॉब्लम्स के बारे में, दिक्कतें क्या आती हैं, क्योंकि मैं अभी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता उन चीज़ों को लेके। अभी आप बहुत फ्रेश स्टेज में हैं, अभी आपको बस मुझे एक पॉजिटिव आइडिया देना है कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है, पर अगर आप ढंग से आप मेहनत करेंगे तभी। और ये आप मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहे हैं, बहुत सारे दोस्त रहे हैं जिनका नहीं भी हुआ है, तो उनको देख के मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद से सीरियस ना हो, जब तक आपको खुद में लगे कि आप एग्ज़ाम आपका अपना एग्ज़ाम नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने ये जो प्राइम ईयर्स हैं उनको मत बर्बाद करिए। आप जब सीरियस हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं 100% अपना देने को तैयार हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में आएँ। और बाकी तो हमने सुना ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप वो कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी डेफिनेटली आपका क्लिक कर जाएगा।
आई थिंक आई लीव एवरीथिंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, विच अगर आपको कोई डाउट्स हों तो सर भी हैं, मैं भी हूँ, शशांक सर भी हैं, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for sharing such valuable insights. We'll be always indebted to your kind words. Sir, you mentioned so many points like importance of dealing situations with confidence, hard work and right direction is necessary, applicative utility being important than academic intelligence in this exam, and of course all the myths that you have cleared. So once again, thank you so much, sir. We'll proceed towards question answer round shortly. So you all can have questions. You can directly raise your hand and like from your seat only you can ask. You can directly ask from it's audible. The floor is open for the questions. Yes. सर आपने कहा जैसे कुछ बच्चे हैं वो ऐसे भी हैं जो अभी यूपीएससी के लिए कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है, उसके सेवरल रीजन हो सकते हैं सर, सोसाइटी हो गया, पेरेंट्स हो गया, तो मैं उन वैसे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे सवाल पूछता हूँ सर कि उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें, और अगर वो हमारा सपना नहीं है तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है जिंदगी का, उसको कैसे पता करें सर? आपका आपका सवाल बेसिकली ये है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं उन सारे समुदाय को आप रिप्रेजेंट करते हुए ये पूछ रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें, और यदि नहीं करते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का. देखिए, अल्टीमेट गोल, पहले तो मैं उसी की बात करूँगा. तो सभी लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपकी जेब में पैसे हैं. अल्टीमेट गोल कुल मिला के सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना है, और घर को थोड़ा सा सपोर्ट ही करना है. राइट? सिस्टर है, उनकी शादी करनी है, मदर बीमार है, या रिलीजियस प्लेसेस पे उनको लेके जाना है. सबके अपने अपने सपने होते हैं, ठीक है, और सपने तो अपने होते हैं. ये एक तो बात हो गई कि लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या है. मैस्लो नीड हायरार्की के हिसाब से बेसिक नीड के साथ साथ में एक सिक्योरिटी नीड भी होती है. सिक्योर्ड होना पड़ता है, इसलिए आप लोग इंश्योरेंस कराते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, और इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, जिससे कि कुछ भी ना चल रहा हो तो कम से कम इतने पैसे तो आ रहे हैं कि 25 से 50 हज़ार रुपये में घर का खर्चा चलता है. सेविंग्स हमारी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है. गवर्नमेंट जॉब भी तो यही है. प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर था, निकाल देगा बॉस, चाहे 5 लाख रुपये का पैकेज हर महीने मिलते हैं. सिक्योरिटीज़ नहीं है. ये जो सिविल सर्विसेज है या कुछ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है. लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि आपको मंथली कुछ मिलता रहे, इमेज अच्छी हो. मैस्लो नीड हायरार्की के हिसाब से एक सोशल नीड और उसके ऊपर एस्टीम नीड आ जाती है. उसके ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, निर्वाणा, निर्वाणा की प्राप्ति, जो गौतम बुद्ध को किसी पेड़ के नीचे हुई थी और आपको यहाँ पे आके हो जाए शायद, तो यहाँ पे मेरा आना सफल हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है कि हम लोग सोशल नीड तक पहुँच पाएँ. सिक्योरिटी नीड आपकी पूरी हो गई तो घर वाले आपको बस पहला सवाल जब आप घर पे जाएंगे तो यही होगा कि बेटा चलो अपनी मम्मी के साथ में कहीं चले जाओ, देखने जाना है किसी को. देखने मतलब लड़की देखने जाना शादी के लिए. मन आपका बड़ा खुश हो गया होगा इस बात को लेके. नौकरी लग गई, सिक्योरिटी नीड हो गई, लाइफ पार्टनर मिलेगा, बस. तो अब अगेन आप ये कहते हो कि सिविल सर्विस की तरफ मैं क्यों जाऊँ. सिविल सर्विसेज इज मदर ऑफ ऑल दी एग्ज़ाम. सबसे आसान एग्ज़ाम, जैसा कि अमोल ने भी बताया कि सबसे आसान जो एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विस का है, लेकिन इसमें सिलेक्शन कठिन है. सिलेक्शन इसलिए कठिन है दोस्त कि हम उम्र के जो लोग होते हैं उसमें डाइवर्जन्स बहुत होते हैं. यदि आपने टॉर्टोइज रेस पकड़ ली, कछुए की चाल, और आपने इधर उधर नहीं देखा, मान लो कि आप मंजिल तक बहुत ही पहुंच जाओगे, मंजिल तक बहुत ही पहुंच जाओगे. लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि किनारे पे बैठ के तो कुछ नहीं मिलेगा. मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं. राइट?
तो अब इस सिलेक्शन के बारे में आपको सोचना है, इस तैयारी के बारे में सोचना है, इसलिए क्योंकि आपके जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। आई थिंक आप पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री डिपार्टमेंट से होंगे या हिंदी से होंगे, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ के बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी से वहीं आपका यूजीसी नेट जेआरएफ आपका निकल जाएगा। उसके बाद में यदि आप एनसीसी लेके रखे हुए हैं, आप जर्नलिस्ट की जॉब के लिए जाते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और आप यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट देते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बिलीव मी 95% चांस ये है कि उन्होंने यूजीसी नेट का ट्राई किया होगा। क्वेश्चंस आपके उसी सब्जेक्ट से आएंगे। इंटरव्यू आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए है, आपको मार्केटिंग मैन या सेल्स के लिए लिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? यूजीसी नेट के उस सब्जेक्ट से, और वहाँ पे आप उन्हें इतने अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, इस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। यदि आप मार्केटिंग में प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो शायद यू विल बी सेल द रेफ्रिजरेटर टू द एस्किमोज बिकॉज योर कन्विंसिंग पावर्स आर सो हाई। आप समझ पा रहे हैं? एस्किमोज जो बहुत बर्फीले इलाके में रहते हैं, है ना, और उन्हें भी आप यदि रेफ्रिजरेटर बेच पाएँ क्योंकि आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, और वो कन्विंसिंग पावर इसलिए अच्छी है क्योंकि इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते आप इतने बड़े इन्फोक्रेट बन गए हैं, इतने बड़े बीरबल बन गए हैं कि अकबर आपके बिना बन ही नहीं सकता कोई। अकबर बनना तो सीधा सीधा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीरबल बन गए तो ये चांस जरूर है कि आप अकबर भी बन जाओगे। कुल मिला के एक पर्सनैलिटी, एक लेक्चरेट, एक इंफॉर्मेशन, एक कनेक्ट, एक रेफरेंस पॉइंट, सब कुछ ये एग्ज़ाम आपको दे देता है। इसलिए कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो, इसके बारे में आप ज़रूर सोचना है। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन लेना बहुत हार्ड होता है। जिसने सिविल सर्विस की तैयारी की होगी और अच्छी थोड़ी सी पर्सनैलिटी है, बिलीव मी, उससे ऊपर पार नहीं है। उसे बस वही पार करेगा जो सिविल सर्विस की तैयारी किया होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई सेइंग। एंड यूजीसी नेट जेआरएफ निकल जाता है तो फिर ये कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेगा एक फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, राइट। सो हर जगह पे कहीं तो सोना है और कहीं चांदी है, यही यूपीएससी का एक मूल मंत्र है, राइट। इट इज़ द ग्राउंड वेयर ऑल द ओलंपियंस मीट। ओलंपियंस से मतलब ये है कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो यहाँ पे आके सब कुछ देख के जाते हैं, और कहीं पर भी जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। और तो और जब आप अपनी फैमिली में अपने बच्चे को अपब्रिंग करते हैं, बिलीव मी, आपसे अच्छा कोई फादर नहीं हो सकता उस बच्चे के लिए। आप इंस्टीट्यूट नहीं है, आप उस बच्चे के लिए इंस्टीट्यूशंस है। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? Please mention your name and course and from whom you are question. Sir, good afternoon. My name is Siddharth Singh from the Department of BA Program. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि जर्नी लॉन्ग भी है और हार्ड भी, तो कैसे मोटिवेटेड हैं? ये सवाल आपका मुझसे है या अमूल जी से है? दोनों से है। मैं अपनी तरफ से यही इनपुट देना चाहूँगा कि रास्ता जब लंबा है और इसको तय करना भी ज़रूरी है, मोटिवेशन रहे। हर दूसरे दिन जब रास्ता लंबा होता है तो ये सवाल आता है कि यार छोड़ दे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क हर किसी के दिमाग में आता है। देयर वॉज स्टूडेंट ऑफ माइंड 2011 की बात है, अदिति चौधरी। वो वेस्ट बंगाल कैडर में IAS हैं। कुछ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, साइकोलॉजी लिया। साइकोलॉजी का मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, एक क्रैश कोर्स। देन शी बिकेम माई स्टूडेंट। चौथा अटैम्प्ट था, 4 अटैम्प्ट हुआ करते थे उस वक्त, अभी 6 हो गए हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आया उससे पहले मेरे पास कॉल आया कि सर मैंने ना बैंक क्लर्क का फॉर्म भरा है, बैंक क्लर्क का फॉर्म भरा है, मुझे बड़ी चिंता है, इसमें सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, शी इज़ हैप्पी, सेलेक्ट हो गई कि सर बैंक क्लर्क का तो एग्ज़ाम में देने ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मेडिकल भी है आगे। और उस 4 साल में वो जो पेशेंस हैं पहले दूसरे अटेम्प्ट में और उससे भी पहले कि इस तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्या हुआ होगा उस ज़िंदगी में। ये तो एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एक दूसरी गर्ल जो फ्रेजाइल बॉन्ड डिसऑर्डर से सफ़र करती है,
और भी कई सारी परेशानियाँ। फिजिकल हैंडीकैप, एक जो दिव्यांग जो होते हैं वो अपने आप में इकोनॉमिक बर्डन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। ये अपने आप में एक बहुत इनेबिलिटी बन जाती है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उनके दिमाग में कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता होगा। आप तो पूरे के पूरे अच्छे खासे हेल्दी हैं। ये क्वेश्चन मार्क आपको तब आएगा जब आप पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट है पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, एथिक्स पढ़ाता हूँ। यदि मैंने पढ़ाया तो हो सकता है आप इन्जॉय ही करेंगे सारा कुछ, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हम तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जब आप सेल्फ स्टडी में आते हैं तो आपको लगेगा ये तो बहुत मोनोटोनी हो गई। आपको उसी में ही फ्लेवर ढूंढना है। एक स्मार्ट पर्सन जो होता है, क्योंकि ये हार्ड लेबर की बात नहीं है, ये एग्ज़ाम की तैयारी हार्ड वर्क नहीं है, इसमें स्मार्ट वर्क भी रखना पड़ेगा कि तरीके से घूमते हैं। तैयारी जब साथ में कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 लोग होते हैं, कुछ लोग खाना बनाएंगे, कुछ लोग रूम की सफाई करेंगे, कुछ लोग बाहर के लोगों को देख लेंगे, सबकी ड्यूटी लगी होती है। तो वो अपना अपना ना बांट लेते हैं कि हाँ जी डीएम साहब आपको सब्जी लेके आनी है, हाँ जी एसएसपी साहब आपको आज की सफाई करनी है। मतलब दोस्तों में नाम रख लिया उन्होंने। अच्छा, उनकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये साइकोलॉजी के हिसाब से है, क्योंकि उनके चॉइसेस ये थी कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को दूसरा सिविल सर्वेंट बनना है, आईआरएस, उनको आर में बहुत इंटरेस्ट है। आर मतलब रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबको उस नाम से बुलाया जा रहा है, बड़े खुश होते हैं उस नाम से। अब वो खुशी जो है ना वो बार बार मोटिवेशन देती है, नहीं यार एसएसपी, एसपी, आईएएस, डीएम ये सब कुछ बनना है। एज अ स्टूडेंट तो आपको यही सोचना है। तो ये एक छोटी सी खुशी दोस्तों ने एक दूसरे के लिए दे दी। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, जबकि जो एक ग्रुप डिस्कशन पार्ट नहीं है इस एग्ज़ाम का। ग्रुप डिस्कशन में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे हाथ पैरों की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे जुबान से लड़ाई है। एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए। जब आपने बोल दिया उस ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों के ऊपर, दोस्त भी इम्प्रेस हो गए, आपके अंदर से एक हार्मोन निकल के आता है जो आपसे कहता है यस मैं कुछ तो यार इम्प्रेस तो कर सकता हूँ किसी को, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हट जाता है। जब रास्ता लंबा है तो अगेन साइंस में आपने 10th या 12th क्लास में जो कैलकुलस या इंटीग्रेशन पढ़ा है, धरती से लेकर चांद तक की जो दूरी है, वो कैलकुलस या इंटीग्रेशन का रोल इसलिए होता है कि जब दूरी लंबी हो तो उसको छोटे छोटे डिस्टेंस में डिवाइड कर लो, dy/dx, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, राइट। सो कैलकुलस का मैसेज आप अपने इस प्रिपरेशन में यदि अप्लाई कर देंगे तो इसको कलरफुल बना ले जाएंगे। कुल मिला के अगेन आई विल से कि आप प्योर स्टूडेंट ना बने, आप ब्रिलियंट स्कूल बॉय बने। 12th क्लास की वो लास्ट ईयर थी, वो रातें सबसे ज़्यादा मेहनत उसी वक्त हुई थी। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, दूसरे सेमेस्टर में आए हैं, आपको यही नहीं पता यार ये पेपर में हमने क्या लिखा था, हमारी इतनी परसेंटेज कैसे आ गई। इट इज़ नॉट इन प्रपोर्शन टू वॉट एनर्जी एंड टाइम यू पुट इन 12th क्लास। In college what is happening is just opposite to that. Just be in that year 12th class में इस brilliant school boy, brilliant school girl, वो ना तो कभी डिप्रेशन में आता है ना आती है, और वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करती है। मोटी मोटी किताबों के अलावा छोटी छोटी जो जिनको हिंदी में कुंजी बोलते हैं उसको भी पढ़ के जाना होता है। ऐसा ही काम करना है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी यही है। दोस्तों को नहीं छोड़ना है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है। आई थिंक मैं सारी चीज़ें बोल पाया हूँ। आई थिंक अमोल कैन ऑल्सो से समथिंग अबाउट इट। वो माइक तो मोटिवेशन जो है ना, जैसे सर ने भी बोला कि लंबी जर्नी है, उसको आपको डिवाइड करना है। तो इसके ना दो पहलू होते हैं मोटिवेशन के। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक मोटिवेशन जो आपको बाहर से मिलता है, उसको कई बार इंस्पिरेशन भी कहा जाता है कि आपने किसी और को देख के इंस्पायर हो गए हम। पर इंस्पायर होने तक जब तक वो खुद के अंदर ना आए तब तक आप काम करते नहीं। हाँ बढ़िया हो गए इंस्पायर, हाँ वो अच्छा खेलता है, वो अच्छा बॉडी बनाता है, वो अच्छा पढ़ाई करता है, खत्म बात। तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो बाहर का है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं तैयारी के दौरान? आप देखिए कि लाइफ कैसी होती है सिविल सर्वेंट की। आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए कि क्या क्या काम करते हैं, आप गूगल करिए, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। डेफिनेटली किसी शहर में किसी डीएम ने, किसी एसपी ने, किसी और ऑफिसर ने कुछ अच्छा काम किया होता है, वो इंस्पायर करता है। आप जाके देखिए ट्रेनिंग कैसे होती है आईएएस आईपीएस की, आपको वो इंस्पायर करेगी कि वो एक जो माहौल होता है ट्रेनिंग का, वो बहुत इंस्पायर करता है। ये तो बाहर से मोटिवेशन हो गया। जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन
क्या होता है कि डिमोटिवेट इंसान तब होता है जब चीज़ें ठीक ना जा रही हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं आप उनको अचीव करते रहिए। आपका अगर डेली टारगेट मीट होता रहेगा आप कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। मान लीजिए आपने सोचा है कि आज मुझे एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं किसी किताब के और 5 आंसर लिखने हैं मेंस के। जिस दिन आपने वो तीनों चीज़ें कर ली आप क्यों डिमोटिवेट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आप अगले दिन और अच्छे उससे जाएंगे। जो हैप्पी हार्मोन होता है, एंडोर्फिन होता है, फिर जिससे कि आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अगले दिन आप फिर बोलेंगे नहीं अब मैं 3 चैप्टर करूँगा आज, अगले दिन आप 3 भी पूरे कर लेंगे। तो ये फिर आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता जाएगा। बट अगर आपने सोचा कि नहीं आज मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगले दिन आप बोलेंगे अरे एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन का छोड़ा है कल कर लेंगे, कल आपके पास 2 हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे न्यूज़पेपर, अगले दिन 3 हो जाएंगे, हफ्ते भर के बाद 7 हो जाएंगे आपके पास, फिर बोलेंगे यार 7 तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, फिर आप छोड़ देंगे, फिर आप बोलेंगे अरे मेरी तैयारी। तो सर आपके साथ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते होंगे जो मंथली मैगजीन होती है, जो न्यूज़पेपर होता है वो खत्म महीने का खत्म ही नहीं होगा, डेली का खत्म ही नहीं होगा, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आप अपनी किस्मत को दोष देंगे या आप यार ये तो तैयारी ऐसी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई करेगा ही नहीं। आपने जो वो एक ही कदम लेना होता है ना, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जब तक आप हर एक स्टेप को पूरा नहीं करेंगे तो आप एक साथ छलांग तो वहाँ लगा ही नहीं सकते। उस चीज़ को आप सब लोगों के लिए आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो जो भी बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए कि आपको पहले ये करना है, आज पहले 1 महीने में ये करना है, फिर 2 दूसरे महीने ऐसे करना है। उस तरीके से आप कुछ भी करेंगे और फिर कभी डिमोटिवेट आप होंगे नहीं। और जब बाहर से मोटिवेशन चाहिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके लिए। और आज की डेट में इतनी सारी मूवीज़ हैं, मोटिवेशनल मूवीज़, जैसे भाग मिल्खा भाग है, एंड आज की डेट में तो सीरीज़ भी कई सारी आ गई हैं जो एक्चुअल में बड़ा हार्ड था हम लोगों को अपने टाइम पे कि ये सर्विसेज में होता क्या है, प्रिपरेशन में होता क्या है, जो सीनियर है वो क्या करते हैं। आज की डेट में तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है, राइट, बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर एडवांस्ड सोसाइटी। तो आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कभी थी ही नहीं। तो एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा किसी के लिए भी, क्योंकि ये कलम का सिपाही बनने वाला एग्ज़ाम है, इसमें शरीर ख़त्म हो जाता है। आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, अपनी हेल्थ की एक्सरसाइज को ना कम से कम ये कहें कि मुझे पसीना ज़रूर निकालना है अपने शरीर से दौड़ के, कैसे भी करके कोशिश करें कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। आपका मोटिवेशन के कुछ रूल भी होते हैं, बॉडी के फिजियोलॉजी हैं हम सब, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको आप नीचे मत जाने दो, मोटिवेशन कम नहीं होगा। ये मुझे एक समझ में आता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे याद आता है कि आई वेंट टू हैदराबाद, तो वहाँ पे जो दूसरे कंट्री के साथ साथ में जो प्रोफेशनल्स हैं वो साथ में आते थे। उनके एग्ज़ाम का जो रूल है, जब एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, उससे पहले भी मेडिकल होता है। एंड आई शुड से कि वहाँ पे कुछ मेरे मेल स्टूडेंट थे जिनसे मैं मिलने के लिए गया था, तो वो कहते हैं सर जो गर्ल्स ट्रेनिंग करने के लिए आई है ना दूसरी कंट्री से, वो हमसे ज़्यादा फिट है। उनकी हाइट, उनके जो मेडिकल फिटनेस है वो ज़्यादा फिट है। उस वक्त एक कारण ये भी था कि बहुत सारे लोग सिविल्स में IAS का भी तैयारी करते हैं, IPS बनने के बाद में दूसरा अटैम्प्ट भी देते हैं। तो कई वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, परेड, सुबह उठना, उसके बाद शाम को PT और वहाँ का टेम्परेचर। तो कई बार ये भी होता है कि एग्ज़ाम का मोटिवेशन होता है। उस वक्त तो EOL जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। EOL मतलब एक कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग लीव का, कि आपको यदि एग्ज़ाम दोबारा देना है तो आप 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं। वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। आज की डेट में वो चीज़ अवेलेबल है, जिससे कि ट्रेनिंग भी आज की डेट में स्मूथ हो पाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? Good afternoon. First year history on student. Yeah. So sir, we are studying a new education policy 2022. We have 7 subjects, sir, and there is inclination that we want to study from first year itself. And sir, reading newspaper early in the morning, managing 7 subjects, so the day become very hectic. So what should be the ideal scenario or a timetable for a first year student? And even I am looking for history option in the future. So what should be the timetable for student types? बैठो। पहले तो इनके लिए तालियां, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
सबसे पहले हमारा मन जो है वो क्या कहता है, कोई भी जैसे हार्ड चीज़ देखी क्या कहेगा, मन क्या कहता है, भाग लो। सुबह नींद आ रही है, क्लास जाना है, मन क्या कहता है, सो जाओ। ठीक है, होगा सो देखा जाएगा। लेकिन सोशल एनिमल है, एनिमल ने क्या बोला, प्राइमरी एनिमल ने, हम लोग सोशल एनिमल है, होमोसेपियंस। एनिमल ने बोला कि सो जाओ। सोशल वर्ल्ड जब मैच्योरिटी धीरे धीरे आती जाती है, सपनों का एक प्रेशर है, किसी से किए हुए वादे हैं, नहीं तो वादे टूट जाएंगे, तो आपको ये ख्याल आता है कि नहीं वो काम करना है। न्यूज़पेपर इतने बड़े पेजेस हैं, उसमें कैसे कवर हो। आज सुबह सुबह जब मुझे यहाँ सेमिनार के लिए आना है तो मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ आपके न्यूज़पेपर के लिए, मुझे बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो व्हेन आई वाज ब्रशिंग, इन माय बैकग्राउंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ वाज प्लेड। ऑल इंडिया रेडियो बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीवी तो मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन आर्काइव में हमेशा अवेलेबल है। मैं रात को 9 बजे की न्यूज़, क्योंकि सुबह का बुलेटिन जो है वो 9 बजे के बाद रिकॉर्ड होकर आर्काइव में आएगा, मैं रात को 9 बजे की न्यूज़ को सुन रहा था जिससे मैं अपडेट हो जाऊं। न्यूज़पेपर भी वहीं पे डिपेंडेंट होता है। एक गंगोत्री है जो मतलब एक मेन सोर्स है, वहीं से सारे के सारे न्यूज़पेपर निकल रहे होते हैं, एडिटोरियल्स निकल रहे होते हैं। नाउ दैट 15-minute बुलेटिन हैज़ गिवन मी आइडिया ऑफ ऑल द मेन न्यूज़। देन आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर while having the tea, और उस न्यूज़पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ने में। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल को देखा। मेरे पास टाइम कम है तो जो छोटे छोटे एडिटोरियल आ रखे हैं जैसे हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, उनको मैंने कवर किया। तो मेरा काम पूरे दिन का लगभग हो गया कि भाई इतना तो मैंने कर लिया है कि मैं अब किसी को भी फेस कर पाऊँ पूरे दिन में आज के करंट अफेयर्स को लेते हुए। तो आपका यही सवाल है कि एज एन एस्पिरेंट न्यूज़पेपर को हम लोग कैसे कवर करें, जबकि हमारा पूरे के पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो बड़ा टाइट है। तो सबसे पहले ये है कि अपने आँखों को थोड़ा सा आराम दें। तो आपके कान, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत हैं इस सिविल सर्विस की तैयारी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आप ज़रूर सुने, और या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ जिनको आप देख ना सकते हो लेकिन सुन के कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, हिंदी में जो बुलेटिन अवेलेबल है वो एग्जैक्टली इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप कितने भी बड़े इंग्लिश में अच्छे खासे कॉन्वेंट के एलुमनाई हों, लेकिन जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात आती है यहाँ पे वोकेबलरी बहुत डिफरेंट है। आपको बात कहनी है, लेकिन बात इस तरीके से कहनी है कि काने को खाना ना कहियो, खाना जाएगा रूट, उससे धीरे धीरे पूछ कि तेरे साथ में ये कैसे हुआ, कि तेरी कैसे गई है फूड। तो जो कहने का तरीका है वो ये सिविल सर्विस की तैयारी में लिखने का जो एक शैली है, स्टाइल है, वो आपको न्यूज़पेपर से आती है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू न्यूज़पेपर से आती है। ओपिनियन भी बनाने होते हैं, हालांकि हिंदू न्यूज़पेपर में तो थोड़ा लिबरल लेफ्टिस्ट चला जाता है, इंडियन एक्सप्रेस इज़ बेटर जहाँ तक पे हमें इन्फॉर्मेशन लेने की बात है। तो आप एडिटोरियल को ज़रूर देखें, और जो न्यूज़ चैनल है उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दूसरी एक बात कि न्यूज़पेपर अकेले आप पढ़ते हैं तो समझ में पूरा नहीं आएगा, हैंड होल्डिंग ज़रूरी है। हम लोगों के पास में कई सारे ऐसे सवाल आए थे, तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम एक क्लोज एंडेड चीज़ें बनाएं, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखो कई सारे लाइव चल रहे होते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लोज एंडेड किसी के साथ में बंध जाते हो जो आपको जानता है और आप उसे जानते हो, और वो जूम सेशन में आपका न्यूज़पेपर पूरा का पूरा कवर अप दे रहा है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट, जब आप सारे के सारे काम खत्म कर चुके हैं, या वीकली चलता है 2 days, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। जो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव ले रखा है, एंड उसमें मैं भी शामिल रहता हूँ, राइट। एंड कई सारे हमारे लोग जो एसोसिएटेड हैं, अमोल जी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो कभी भी जब भी टाइम होता है अवेलेबल रहते हैं कि कभी भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करके एक लाइट हाउस बन पाएँ, आपको थोड़ा सा इनलाइटन करने के लिए। यदि ये 2 महीने तक प्रोग्राम आपका न्यूज़पेपर का चल जाता है तो फिर आपकी हैबिट पैटर्न में आने लगती हैं चीज़ें। कहीं थोड़ा बहुत जो वर्ड है, जैसे ट्राइवियलाइजेशन वर्ड आ गया कहीं, वो उसका मतलब क्या होता है, मतलब ट्राइवियलाइजेशन का वैसे मतलब होता है टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, बातों से बोल के। तो ऐसे वर्ड का मतलब हमें शायद कभी देखना पड़ जाए। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है
और उसके बारे में नोट क्या करना है, थोड़ा थोड़ा 2 महीने के 3 महीने के बाद आइडिया लगने लगता है. बट आई विल से कि थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन हैव द हैंड होल्डिंग एटलीस्ट फॉर न्यूज़पेपर प्रोग्राम एंड न्यूज़पेपर रिव्यू, चाहे वो वीकली हो, क्योंकि एक्सपर्ट जो होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी उसमें दी हुई होती है, तो उनके ओपिनियन, उनके बेसिकली यूसेज उस इंफॉर्मेशन के क्या हो सकते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपके ऑप्शनल में, वो बहुत मल्टीफेसेटेड होते हैं, आपके माइंड से तो ज़्यादा ही होते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर ऑल 3 years, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको राइटिंग स्टाइल, आपके ऐसे कंपटीशन, आपके एथिक्स के पेपर, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट सबको तैयार कर रहा होता है. आपका जो सवाल था कि आप तैयारी करें या ना करें, मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि कॉमर्स के लोग भी ऐसे आएंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पहले तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक ऑप्शनल बनता है. आप बहुत बड़े ओलंपियन बन जाते हैं यदि इस ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, यदि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले हैं आप तो. दूसरा, इसमें CSET ऐसा पेपर है जिसमें रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जैसे कुछ लोग मैथ बोल देते हैं या अर्थमेटिक बोलते हैं, वो एक कंपोनेंट है. लास्ट ईयर का जो पेपर ऐसा आया था, तो मुझे कुछ IITN और IIM के बड़े बड़े जो धुरंधर हैं उन्होंने बताया कि सर हम थोड़े से इस मूड में आ गए थे कि पानी पी पी के ही अपने आप को बेहोश कर दें या क्या करें. यू कैन अंडरस्टैंड कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है और वहाँ पे एक IIM पर्सन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है वो एग्ज़ाम देता है, कहता है भैया मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या था, ये है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम. और बिलीव मी, इट वॉज नॉट अ रॉकेट साइंस. लेकिन सिंप्लिसिटी समझना भी तो हर किसी की बस की बात है ना. यहाँ पे तो लोग बनावट के दीवाने, हम अपनी सादगी को लेकर कहाँ जाएं. ये एक सिविल सर्विस फ्रेटर्निटी का मैसेज है सभी उन लोगों के लिए जो उनसे बिलोंग नहीं करते दूर दूर तक. तो आई थिंक आई कैन टेल यू अबाउट दिस कि न्यूज़पेपर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए सबको सोचना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं, बैंक पीओ में, NCC के थ्रू आप SSB में जाते हैं, बिलीव मी NCC के अंदर में ग्रुप डिस्कशन के अंदर, लेक्चरेट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर जो स्पार्क आप देते हैं, क्योंकि आप GS के मास्टर हो चुके हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छी खासी आ गई, सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से ही सिलेक्शन होता है, बट यस, एक आपकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा होता है. न्यूज़पेपर इज बैकबोन ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन. एनी अदर क्वेश्चन? This is the last question. After this, will be the Good afternoon, sir. Good afternoon. My question to Mr. Amol Srivastava, sir. Sir, my question is little bit different from the civil service preparation. Sir, you have been in the service from the last 5 to 6 years. Sir, I want to know that what was the most challenging part of your job as an IAS officer, and the second is that you have already pointed out that there should be reason to become a civil servant. Then only we are able to rigorously follow the syllabus and able to crack the examination. So the passion or the reason which you have entered in the service, do you think that I am able to achieve all this? Thank you, sir. तो काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन था. आप वंस फर्स्ट ईयर में हैं? Yes, sir. तो एज एन ऑफिसर challenges are part of everyday life. Okay. कभी इतनी हाई पोस्ट मिलती है आपको DM की, SP की, किसी और सर्विस में उस रैंक की, इसीलिए मिलती है कि आपको डेली क्राइसिस सॉल्व करना होता है. डेली का क्राइसिस रहता है हर चीज़ में. इसी से जो आपका पिछला सवाल, आपका सवाल था ना, मैं उससे आपको वो जवाब दूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहेंगे. अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अभी से 4 साल बाद होगा. मतलब अगर 3 साल ग्रेजुएशन के बाद आपने दिया तो 3 से 4 साल बाद होगा. मान लीजिए आपको रेगुलर सर्विस मिल जाती है, तो उस दिन आप जिस दिन आप पहले दिन जॉब पे पहुंचेंगे ना, आपका काम होगा कि जो आपका जोन होगा उसके सारी जोन्स का, सारी ट्रेन्स का टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है पहले दिन. तो अगर आज 4 साल पहले आप अपने दिन का टाइम टेबल डिसाइड करने में
परेशान हैं कि मैं न्यूज़पेपर और 8 से 3 क्लास कैसे अटेंड करूं, तो अब 4 साल बाद पूरे देश के उस जोन के सारी ट्रेन्स का टाइम टेबल कि आज दिन में कौन सी निकलेगी, कौन सी किसको क्रॉस करेगी, कहाँ तक पहुँचेगी। उस दिन कोई क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया, कोई और इमरजेंसी आ गई, आपको वो सप्लाई ट्रेन भी पहुँचानी है, मैनेज करना है, तो आपको खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो ये क्राइसिस रहता है। सेम सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज में भी पुलिस को नहीं पता है ना कि आज कौन सा क्राइम होने वाला है, या आज कहाँ दंगा होने वाला है, या आज कहाँ लोग भिड़ने वाले हैं। दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्पॉट। ये चैलेंज, ये डेली का चैलेंज है। कभी भी फोन आ सकता है कि हाँ अभी ये ऐसा हो गया, आप पहुँचे हैं, ये काम करें। तब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं अभी तो मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ। आपको जब वो जॉब मिला है, आपको काम मिला है, वो इसीलिए इतनी यंग एज में आपको जो फर्स्ट प्रिविलेजेस की मैंने फर्स्ट डे बात करी थी, और जो मैंने उस फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि पावर जो शब्द है वो अब मुझे शैलो लगता है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो पावर नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आपको चीज़ें दिखती हैं कि हाँ ये एक सिविल सर्वेंट को मिलते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं होते, वो क्योंकि काम इतना चैलेंजिंग होता है, उसको करने के लिए वो सारे प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो जो चैलेंजेस हैं वो डेली का चैलेंज है। मैं अपने सर्विस में, अभी आप फर्स्ट ईयर में, मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं या क्या किया, बट मैंने एक एग्जांपल ये रेलवे वाला लिया है। तो आप सोच लीजिए कि आपको फर्स्ट डे वो काम करना है, तो अगर आप वो चीज़ें चाहते हैं कि मैं एक ऐसा ऑफिसर बनूँ कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, तो आज से आपको वो लाइफ जीनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक वन। अभी आप स्टूडेंट रह गए, मैंने बोला था कि स्टूडेंट माइंडसेट से आपको कॉलेज वाले या स्कूल वाले माइंडसेट से आप IAS एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपना टाइम टेबल आपको खुद चूज करना है। आज आप अपने लिए सही डिसीजंस लेंगे, तभी आप देश के लिए सही डिसीजंस ले पाएंगे 4 साल में। और उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि अभी तो आप 23 साल के ही हैं, तो फिर अभी तो आपको गलतियां माफ हैं, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। द मोमेंट यू साइन कि मैं आज से इस जगह का DM या SP या SDM या ACP का चार्ज ले रहा हूँ, आप यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो ध्यान रखिए। और जो दूसरी बात है कि जो पैशन अभी तक है कि नहीं, पर्सनल केस में हाँ अभी तक है। एंड जो चैलेंजेस आते हैं सर्विसेज में, जिससे कई बार ऑफिसर्स डिमोटिवेट होते हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। जो आप शायद मूवीज में देखते होंगे, आप TV सीरीज में देखते होंगे, वो सब पार्ट एंड पार्सल है सर्विसेज का। एंड कैसे एक हम लोग उस चीज़ को नेविगेट करके जनता के लिए काम करते हैं, जो हमारे ऊपर जो मैंडेट होता है कि आपको स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, वो करना पड़ता है। तो दैट इज जस्ट अ थिंग। अभी 1-2 साल पहले कोई सेमिनार हुआ था, उसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे ऐसे ही सवाल पूछा था। उसमें उन्होंने बोला था कि मैं इसकी IPS की तैयारी कर रहा था, और एक दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के एक IPS ऑफिसर को डांट दिया, और उस दिन मेरा इतना मूड खराब हुआ कि मैंने तैयारी ही छोड़ दी। तो सर आप बताइए इसमें कैसे डील करें? मैंने कहा कि आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि सिर्फ एक देश स्टेट का CM ही है जो उस इंसान को डांट सकता है, और किसी के पास हिम्मत नहीं है किसी को डांटने की। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बॉस CM बने, आपका इमीडिएट बॉस CM रहे, या आपके इमीडिएट बॉस PM रहे, या आपके इमीडिएट बॉस इतने हाई ऑफिशियल रहे? अभी आप कहीं और जाएंगे तो आपको तो कोई भी डांट देगा, सड़क पे निकलेंगे तो कोई भी डांट के बिठा देगा कि यहाँ कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है जॉब का। जैसे किसी एक बॉस के साथ हमारे इंटरेक्शन होते हैं, वैसे वहाँ पे भी उन बॉस के साथ इंटरेक्शन होते हैं। तो इसको मूवीज देख के या वेब सीरीज देख के उसको इतना हमें ग्लोरीफाई या उतना उसको क्या कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, वो आप सीख जाते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और थे वहाँ पे। Good afternoon, sir. My name is Suryan Khanmushi. I am from History Honors first year. Sir, my question is, we are from humanities background, so how we can deal with the maths that comes in the CSAT? As you told that in some IIT student and IIM student are facing problems, so how we can deal with that problem? This was a question जो मैंने जान के उस समय नहीं बोला था, जो मैंने बोला है मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब जिसको पता ही नहीं है कि पैटर्न में CSAT है नहीं है, तो उनके लिए मुझे बोलने का फायदा नहीं था। बट गुड दैट यू हैव आस्क्ड। एंड ये सारे ह्यूमैनिटीज कॉलेजेस में ये इशू रहता है कि हम कैसे CSAT को अचीव करें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले ही
परेशान है, कई साइंस साइड के भी लोग परेशान रहते हैं, मैं भी थोड़ा परेशान था जब मैंने तैयारी शुरू की तब सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे उस समय, तो और इम्पोर्टेंट था उस समय वो, अभी तो क्वालिफाइंग हो गया है वो। तो उधर जैसे जो सबसे मुश्किल काम है ना उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए। आपका अभी एग्जाम 4 साल दूर है लगभग, तो आप जब भी खाली बैठे हो अभी आप बाकी चीज़ें छोड़िए, अभी अगले 2 महीने आप सिर्फ सीसेट की तैयारी करिए। पिछले साल 2011 में शुरू हुआ था, तो अभी 12-13 पेपर्स आ चुके हैं, आप 12-13 पेपर सॉल्व करिए, कोई प्रेशर तो है नहीं आपके ऊपर, तो आप उसको पहले ही करके अचीव वो टारगेट पूरा ही कर लीजिए कि हाँ मेरा हो गया सीसेट, फिर जीएस शुरू करिएगा। मैंने यही किया था, जब मैंने तैयारी शुरू की थी मैंने पहला 2 महीना जीएस करके सीसेट करके ख़त्म कर दिया, तो अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब सीसेट में कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं जीएस शुरू करता हूँ। तो आप अभी से एक बार, अगर आपको डर है, जिस चीज़ का डर हो वो पहले ही कर लेना चाहिए ना। जो स्विमिंग जिन्होंने करी होगी, पहले दिन सबसे ज़्यादा डर लगता है जब पानी में जाना होता है, पर एक बार वो कूद जाओ उसके बाद डर खत्म हो जाता है। फिर देखते हैं कि हाँ भाई पैर कैसे चलाने हैं, हाथ कैसे चलाने हैं, ब्रीदिंग कैसे करनी है, फिर सारे स्ट्रोक्स भी सीख लेते हैं। तो जिस चीज़ का डर हो, कई लोगों को इंग्लिश का डर होता है, कई कॉलेजेस में स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, कैसे हम करेंगे। अभी से तैयारी करना शुरू करिए, उसको आप प्रिपरेशन का पार्ट क्यों लेके आ रहे हैं, दैट कैन, इट्स अ लाइफ स्किल, तो उससे आप कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। वैसे तो इट वाज अ गुड थिंग दैट जिस चीज़ से आपको डर लगता है, सबसे पहले जब आपको बहुत अच्छा टाइम है, प्रेशर नहीं है एग्जाम देने का, उसको तो आप देखेंगे। लेकिन आप कह रहे थे कि ह्यूमैनिटीज से हैं और ये चीज़ थोड़ी सी ऑल द वे लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक अप। आई विल से कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं सीसेट में: इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देन रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरल मेंटल एबिलिटी क्योंकि मैथ इज़ नॉट पार्ट ऑफ सीसेट, इट्स अ मिसनॉमर। मैथ और जीएमए में बहुत अंतर होता है। आपको गांव के कुछ लोग याद होंगे जो ब्याज का काम करते हैं, उनसे आप करोड़ों रुपए की ब्याज का इंटरेस्ट निकलवा लीजिए, वो तुरंत निकाल के दे देंगे, और आप लेके बैठे हुए हैं अरे x = y, y वो कंपाउंड में निकाल देंगे। हाँ, कंपाउंड में निकाल देते हैं। ये होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस, एंड यही यूपीएससी को पसंद भी है। एज अ ब्यूरोक्रेट भी आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे होते हैं, वही चाहिए। इसलिए ये एप्टीट्यूड आपका है ना, ये चाहिए। एप्टीट्यूड बेसिकली टू थिंक ऑफ इन टाइम, एंड आपके एटीट्यूड के लिए उन्होंने ऐसे पेपर पर्सनैलिटी टेस्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे भी आप सीसेट के कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग है, 66 लेके आने हैं। रीजनिंग के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस, कि सीता की माँ की बहन की बेटी के पापा का नाम क्या था, तो कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ अननोन नहीं है। तो रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, मैं ये बोलूँगा कि जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर का, उसको आप एक पैसेज बनाइए और उसी में से क्वेश्चन निकाल लिए। करंट अफेयर्स, आपकी कन्वेंशनल चीज़ें भी तैयार हो ही रही हैं, लेकिन वो हर पैसेज सीसेट का पैसेज होना चाहिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। नंबर 2, रीजनिंग के वो एरिया जो आपको सबसे ईजी लगते हैं उनको आप अलग से फिल्टर कर दीजिए, और सबसे हार्ड हैं उनको अलग से फिल्टर कर लीजिए। कुछ तो ऐसे एरिया जो आपको छोड़ने पड़ेंगे कि भाई मुझे को देखना ही नहीं है उन्हें। सीसेट का पेपर इज़ ऑल द वे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वो वीकनेस क्या है जिसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। यदि आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो 66 से थोड़ा सा तो ऊपर हाई जाएंगे। यही पेपर का बेसिकली डिज़ाइन है। यू अंडरस्टैंड? सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग ह्यूमैनिटीज़ वालों को देखना चाहिए, बिकॉज अमोल इज़ बिग डाटा साइंटिस्ट ऑल्सो बिफोर ही वॉज इनटू द सिविल सर्विस। सो ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा सा एक फियर साइकोसिस होता है कि यार ये जहाँ पे भी उन्होंने मैथ के डिजिट देख लिए ना, अरे बाप रे बाप ये कैसे होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, राइट। बाकी सूखे पत्ते को इश्क हुआ है बहती हुई हवा से, देखे क्या मुकाम आता है। लास्ट क्वेश्चन। एंड जिन लोगों के क्वेश्चन और भी रह जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं पूछने में, आप लोगों के पास में एक गूगल फॉर्म है, उसमें आप यदि भेजते हैं इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यदि आप अपने सबमिट करा देते हैं प्राइवेटली, यदि एक ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी में केवल 2 लोग ही होंगे, एनोनिमिटी पूरी मेंटेन्ड है, आपको आंसर भी मिल जाएगा। और यदि आपको थोड़ा सा डिमिस्टिफिकेशन अपने क्वेश्चंस के बारे में चाहिए, वी कैन हैव एन ऑनलाइन जूम सेशन कोऑर्डिनेटेड बाय द सोसाइटी ओनली, जहाँ पे आप लोग 1-to-1 बात कर सकते हो मुझसे, अमोल से, और भी जो हमारे लोग हैं जो सीनियर पीपल हैं, यदि वो भी आपकी हेल्प कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग एक क्वेश्चन और ले सकते हैं।
Good evening, sir. My name is Siddharth Tiwari from PA program, Geography and Political Science. So my question is, optional play an important role in the UPSC exam. So how to choose the optional? इसका जवाब आपको अमोल सर ने ही दिया था आपके, कि इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल सर्विस पहले भी कुछ और दी थी, लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल साइंस लिया जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लिखने के लिए बहुत फ्लेवरफुल राइटिंग स्टाइल चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ऑप्शनल चुनना अपने आप में उतना ही बड़ा क्वेश्चन है जितना बड़ा क्वेश्चन लाइफ पार्टनर को चुनते वक्त होता है। आई एम सेइंग द करेक्ट थिंग। वो शायद उतनी डिफिकल्टी लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं होगी, और ये भी होता है कि पहले चलो देख लेते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं और फिर थोड़ा पता चल जाएगा। ऑप्शनल के बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर्म में पहले दिन ही भरना पड़ता है। फॉर्म में पहले दिन ही भरना पड़ता है। सो ऑप्शनल सबसे पहले तो आप ये देखो, चार चीज़ें होती हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट, पैशन क्या है। कुछ आप लिस्ट बना लो कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा सा अच्छा हूँ, तो कुछ एक ट्रेंडिंग में ऑप्शनल चल रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रो है, हिस्ट्री भी है, राइट। आई एम नॉट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट दैट यू नीड टू गो फॉर दीज नेम दैट आई हैव मेंशन्ड। आप लिस्ट बना लें, फिर उनके PYQs देखने की कोशिश करें। अब यदि आप सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, हालांकि मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाता ना, मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। गांधी जी के विचार, अरे मेरे को तो सब पता है गांधी जी के बारे में, यू आर गेटिंग द पॉइंट, लेकिन उतना आसान नहीं है। जितना ईजी क्वेश्चन है उतना ही कंपटीशन बहुत हार्ड बन जाता है। आप PYQs कुछ लिखें, कुछ उसके आंसर्स ऐसे ही अपने संदीप भैया टाइप जो गुरु आपके बनेंगे उनसे आप चेक कराएं। हम भी आपको उस रोल में मतलब ले सकते हैं अपने लिए, आपके लिए, और वहाँ से एक क्लैरिटी आपको आएगी कि यस, ये मुझे ऑप्शनल लेना है कि नहीं। ऑप्शनल चुनने से पहले 15 दिन या 1 महीना या 45 डेज केवल यही देखें कि क्या इस ऑप्शनल से मेरा रिश्ता, मेरी कुंडली मैच कर रही है कि नहीं। यदि 36 में से 20 से ऊपर के गुण भी मैच कर जाएं तो भी आप जा सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना कि कम से कम गुण जो मिले वो 25 से ऊपर जाए, जिससे वो संबंध जो है वो टिका रहे ऑप्शनल का आपके साथ। जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें कुंडली मिलाई जाती है, तो 25 से ऊपर के गुण माने जाते हैं कि अच्छे ही होते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट आपका, ऑप्शनल का जो ट्रेंडिंग है वो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा और आप उसे हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। देन राइटिंग जो स्टाइल है उसमें बेसिकली आपको ये नहीं पता होगा कि इस एग्ज़ाम में GS पेपर 1, 2, 3, 4 जो होता है उसमें लगभग 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये है कि लगभग 25 वर्ड पर मिनट आपको ऐसी राइटिंग में लिखना है कि वो सामने वाला समझ ले। हो सकता है कि आप खुद भी ना समझ पाए कुछ देर बाद। डॉक्टर्स राइटिंग वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस में जो आधे लोग होते हैं वो अपने सारी की सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, कहता है मैं लिख ही नहीं सकता। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, कोई दौड़ रहा है 50 किलोमीटर की मैराथन और लास्ट के 500 मीटर में वो शायद फाइनल लाइन पे टच ही नहीं हो पाया। सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक अच्छी राइटिंग स्टाइल से ही पॉसिबल है विद अ गुड फ्लो। तो वो आपको बेसिकली कलम का सिपाही बनना पड़ेगा। हाथों में बेसिकली स्वेलिंग आने लगे इतना लिखा जाए। कहीं ऐसे जो जिम में जाते हैं और डंबल उठाते हैं वैसी कुछ कुछ मोटी स्किन डेवलप होने लगती है, ऐसी आपको आपकी फिंगर के ऊपर में कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे। यदि आप उस पिनकल, उस पॉइंट तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मैं ऑप्शनल के तौर पे खासतौर से ये बताने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ऑप्शनल ह्यूमैनिटी का है तो इतनी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। ऑप्शनल में 500 का आज की डेट में स्कोर होता है। सेफ यही माना जाता है कि 275 से आप ऊपर आ जाएं, और IAS में आना है तो 300 जो आज की डेट का कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि GS पेपर 1, 2, 3, 4 1000 मार्क्स का है। 400 मार्क्स आ जाना इज़ समथिंग विच इज़ सेफ फॉर सिलेक्शन, बट अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर एथिक्स का पेपर एक होता है जो आपको रेस्क्यू करता है दूसरे पेपर के कम स्कोर से, कि वहाँ पे थोड़े से आप ज़्यादा स्कोर कर लें। इस डिटेल को हम लोग शायद 4-5 घंटे के मैराथन टॉप मतलब डिस्कशन में कभी
क्लोज एंड जूम कॉल डिस्कशन में समझ पाएंगे या हमारी फेस टू फेस कभी मुलाकात हो, बट आज के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एंगेज कर पाए और आप लोगों की आंखों से लग रहा है कि कुछ हमें नया मिला है यहाँ पे. सो थैंक यू एंड आई थिंक अमोल कैन ऑल्सो इनलाइटन समथिंग अबाउट दिस. आई थिंक सर आपने जो बोला सब सही है. एंड ऑप्शनल का बस ये आप लोगों के लिए है कि ऑप्शनल जब चूज़ कर रहे हैं तो पहले एक बार सारे सब्जेक्ट देख लीजिए. किसी के बहकावे में मत आइए कि रैंक 1 का ऑप्शनल क्या है और रैंक 10 का ऑप्शनल क्या है. खुद से एक बार चूज़ करिए, उसको खुद पढ़ के देखिए. सर ने बोला कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या PYQs हैं, लिख के देखिए, मेंटर से डिस्कस करिए, फिर चूज़ करिए. जो मैंने उनको CSAT के आंसर में बोला था, अभी बहुत टाइम है आपके पास ऑप्शनल चूज़ करने के लिए. सब पढ़ के देखिए, थोड़ा थोड़ा तो आप इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ ही रहे होंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स तो देखिए कि जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे लिए सब कुछ नया था ह्यूमैनिटीज़. तो मैंने GS एक बार ख़त्म किया, फिर 2-3 ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये शॉर्ट लिस्ट किए. फिर उनको मैंने उनकी सिलेबस देखा, बुक्स देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, देन आई शॉर्ट लिस्टेड कि हाँ पॉलिटिकल साइंस से मेरा रिश्ता जुड़ सकता है. तो वैसे ही करना है. Thank you, sir, for satisfactorily giving all the answers, and thank you all for being such an engaging audience. सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, जब उसका हाथ नहीं रुकता है. इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. With these binding words, we come to an end of our today's session on a positive note, and I am extremely hopeful that our society Udan will remain as dynamic as it has been and will further improve its modus operandi to match the pace of the competitive world in this globalized economy with the support of our faculty members. I would like to take this opportunity to thank Shashank sir for working tirelessly to make such events possible. Thank you so much, sir, for your continuous guidance and support. I would like to invite you to the podium to deliver a formal vote of thanks. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Arun sir, for such a enriching and insightful lecture. बेसिकली ड्यूरिंग द डेज ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि PYQs, प्रीलिम्स, मेंस की रेट रेस में खुद को भूल जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि हमको कैसे खुद से लड़ना है और कैसे एग्ज़ाम से पढ़ना है. एंड दैट एज अमोल सर हैज़ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि देयर शुड ऑलवेज बी एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. So both of the speakers, I am equally thankful to them that they have very well articulated that what should be our way, our planning, our organizing, our strategy to clear this exam. I don't know whether you know it or not that Amol sir has qualified this exam in the very first attempt. Though many of you think that it's very difficult exam and it is not easy to clear it in the first attempt, but I think it's very easy to clear it in the very first attempt because there are chances of getting a very good marks in the interview as well. But it requires a well planning approach. All it's like a smart study organization. The question that you was asked like what are the challenges that you have faced after getting into the service. These see like the challenges are always here. Be as a student we are having challenges कि घर जा कर के we have to look for food, कल का assignment prepare करना है. So it's all about how you tackle the everyday challenges, and if you are able to take care of all these challenges everyday life में तो then you are able to clear it. So thank you sir, thank you, and I must thank principal sir, that is Professor Arun Kumar Attri sir, like who has always been very cordial to this society, and whenever I ask him sir I want to conduct one session, he says okay, do it. I am thankful to our AO Arvind Verma sir because of him I am like we are able to do with the collaboration with Analyst IAS. Thank you to Nitin sir like for sparing your valuable time and giving insightful lecture. And then Amol sir, I know it is difficult to be while being into a service to take out such a time and like to interact with like young minds, and you were very well articulated that what should be our ways and approach in order to clear this exam. I must thank Apurva ma'am because
while I'm in the face, but in the background it's she who took care of all of these things, right from arranging and organizing all of these things and making it a successful event. So thank you, ma'am, because without teamwork it is not possible to conduct these, because it requires planning and organization. And thank you to each and everyone for the patient listening. आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी कि जो जो बातें सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से रखी हैं, जितने भी बिंदुओं को छुआ है, उन सारी चीज़ों को अगर अपने जीवन में आप अमल में लेकर के आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो निर्णायक रहेंगी और आपके आगे वाले जीवन में बहुत निर्णायक भूमिका प्ले करेंगी. इसी के साथ सभी का धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. In addition, I would like to say thank to S-Chant Publication, also Mr. Anil and team has come to provide you a kit of S-Chant, because I am an author of Indian Polity book. So this kit will be given to Shashank ji so that it can be kept in library and you can use it. You just see that book and the content, everything. It is for the common benefit of each one of you. Thank you. Sorry, I forgot to mention about it. I'm also thankful to S-Chant Publication. All these books will be kept in the library and you can issue it alike. And in fact, apart from this, I'll try to make sure, in collaboration with Analyst IS, that there should be another books as well, so that it will be beneficial to you all. Thank you, sir. Thank you, S-Chant Publication. Now I request everyone to kindly stand in honor of our national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ